அடுத்து நம் இடத்திலே நம்முடைய தாதா சர்க்கார் குருநாயகனுடைய அருமை முதல்வர் सरकार सैयद मोहम्मद नासिरुद्दीन जीलानी मारूफ असरारुल्लाह साहब सरकार तिबला எஜமான் அவர்கள் ஜாமியா நூரியாவுடைய முதல்வராகவும் இன்னும் அவர்கள் PhD ஆகவும் இருக்கிறார்கள். எல்லா விதமான உலக மற்றும் ஆன்மீக துறையிலும் அவர்கள் பட்டம் வாங்கியவராக இருக்கிறார்கள். இன்னும் பல 10க்கு மேற்பட்ட கிதாபுகளுடைய முசன்னிஃபாகவும் இருக்கிறார்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் தஆலா எஜமான் அவர்கள் இப்பொழுதும் கிதாப் எழுதியிருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் அதை நாம் படிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவானாக. இதேதான் நண்பர்களே, கவனமான கேளுங்கள், அதை விளங்குவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா எஜமானுடைய ஃபைசானை நமக்கு அடைவதற்கு பாக்கியத்தை நசீபாக்குவானாக. இன்ஷா அல்லாஹ். अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वक़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी शानि हबीबी तशरीफ़ा व तहरीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें मोमिन बना, मुस्लिम बनाया, मोमिन बनाया, मुहसिन बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के दिन अपने एक वली ख़ास याद मनाने, उनके तज़किरे करने के लिए हमें उनके उर्स में जमा फरमाया। अल्लाह हमारे आने जाने को इस उर्स की जो बरक़ातें हैं अल्लाह ताला उसे हमें नवाजे और साहिब मज़ार से मोहब्बतें अक़ीदत में अल्लाह इज़ाफ़ा फरमाए। ஆமென். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா நம்மை தன்னுடைய பெரும் கருணையால் முஃமின்களாக, முஸ்லிம்களாக, முஹ்சின்களாக ஆக்கி அருள் புரிந்தான். அந்த அல்லாஹ்வுக்கு எல்லா புகழும். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஏன் சத்தமா சொல்லுங்க? அல்ஹம்துலில்லாஹ். அப்படி சத்தமா சொல்லுங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ் சொன்னால அது மட்டும் இல்லாமல் அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா நம்மை எஜமான் ஃபைதினாயத்துடைய இந்த முழு உருசிலே கலந்து கொள்கிற பெரும் பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு நசீபாக்கினான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். சத்தமா சொல்லுமா? துஆவும் செய்தார்கள். எஜமான் ஃபைதினாயத்துடைய அந்த பேரருளை முழுமையாக பெற்று இங்கிருந்து செல்லக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக. अल्हम्दुलिल्लाह। आज आ रहा हूँ एक अल्लाह के वली के तज़किरे के लिए और उनकी जो है सीरत उसवे को बयान और सुनने के लिए यहाँ जमा फरमाए हैं, जमा हुए हैं। तो ये तज़किरा किसी वली का करना, अल्लाह के मुक़र्रब बंदे का करना, तो बंदे तो बंदे को करते हैं, मगर कुरान से ये मालूम हो रहा है कि अल्लाह भी ये काम करता है। சுப்ஹானல்லாஹ். அன்பர்களே, இன்று நாம் நம் ஷேഖനാயம் அவர்களுடைய புனித வாழ்க்கையை சற்று அவரை பற்றி பேசுவதற்காக வேண்டியும் அவர்களை பற்றி புகழை தெரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டியும் நாம் இங்கே ஒன்று திரண்டிருக்கிறோம். இது அடியார்களை புகழ்வதாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம். இந்த வேலையை அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலாவும் குர்ஆனில் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். आप हम वली शाह साहब के जो है मुरीदीन हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, मुहिब हैं, फैज़ी हैं, सब तुम पे तो फ़र्ज़ है, करना चाहिए ना बाप। और अल्लाह पे क्या है? अल्लाह किसका नहीं तो सबका खालिक है। मगर खालिक हो के अपने मखलूक की जो महबूब होता है उसकी याद बनाता है।
நாம் சர்தார் நாயகத்துடைய குலாம்களாக இருக்கிறோம், அவருடைய முரீதாக இருக்கிறோம், அவருடைய முகப்பத்து கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம், நேசிப்பவர்களாக இருக்கிறோம். நாம் ஃபைசனாயத்தை புகழ்வது பெரிதல்ல, அது ஒரு பெருமையின் கடமையாக இருக்கிறது. ஆனால் நண்பர்களே, அல்லாஹ் தஆலா ஹாலிக், எல்லோரையும் படைத்தவன், அவன் மஹ்லூக்கை புகழ வேண்டிய அவசியம் அல்லாஹ் கிடையாது. இந்த நேசர்களை புகழ வேண்டிய அவசியம் அல்லாஹ் கிடையாது. அவன் புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு. अब उलमा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। अल्लाह कुरान சொல்றான், नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। अरे उन्हें बोल रहा है अहसनुल क़सस, क़सस नहीं बोला, अहसनुल क़सस, जिसमें हुस्न है, जिसमें वो हुस्न हकीकी है, जिस हुस्न में उनको देखा जाता है, उनसे सुना जाता है। அந்த அழகிய கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறேன். யாரு தன்னை பற்றி அடியாருடைய கதை, தன்னுடைய மஹ்பூபுடைய கதை, நேசரனுடைய கதையை அல்லாஹ் தான் சொல்லி காட்டுறீங்களா? கதை சொல்றது மட்டும் சொல்ல, மிக ரொம்ப அழகான கதைங்க. எந்த கதையை ஒன்று அல்லாஹ் பக்கம் சேர்க்குமோ அந்த கதை மிக அழகான கதை என்றார். इससे पहले ये गने इनका मिनल क्या है, खासिरीन क्या मिनल गाफिलीन। अल्लाह अकबर। जरा समझ, अगर जो है अल्लाह वालों का तज़किरा नहीं करा, इसके दूसरा जो ये मालूम हो रहा है जो अल्लाह का तो करना ही करना है, अल्लाह वालों का जो जिक्र नहीं कर रहा, अल्लाह से भी गाफिल होने वाला गाफिल, अल्लाह वालों का जिक्र नहीं करने वाला भी गाफिल हो रहा है। அன்பர்களே, ஏவா சொல்றாங்க, நஹ்னு நक़ுஸ்ஸு அலைக அஹ்ஸனல் क़ஸஸி மா உஹைனா இலைக வ இன் குன்த மின் கபிலில் காஃபிலீன். நான் என்னுடைய நேசரை பற்றிய, என்னுடைய மஹ்பூபை பற்றிய, என்னுடைய நபியை பற்றிய சரித்திரத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இதற்கு முன்பு நீங்கள் காஃபிலீன்கள் இருந்திருந்தாலும் சரியே, இப்ப சொல்ற கேட்டுக்கங்கறான். அப்ப என்ன சொல்றாங்க, அல்லாஹ்வை மறந்தவனுக்கு பேர் குர்ஆன்ல காஃபில் தான். அல்லாஹ்வுடைய ரசூல்மார்கள், அல்லாஹ்வுடைய தூதர்கள், அல்லாஹ்வுடைய நேசர்களை யார் மறந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் காஃபில் தான். மறதியாளர்கள் தான் அவர்களும். वज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व रकाअन वला तकुनु मिनल गाफिलीन। अपनी बात से बोला, अब इनके बात से भी बोल रहा है। मैं ही कर रहा हूँ ना, मैं खालिक हूँ ना, मैं इसको संवारा हूँ ना, आदम से वजूद में लाया हूँ ना, मैं अपने को जो है ना उसमें पा रहा हूँ ना, अब उसको मैं याद कर रहा हूँ। तू क्यों याद नहीं करता? मेरे को तो तू देख नहीं सकता। तंजीम में आया तो मर जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तस्बीह में आएगा तो देख मैं कैसा खाजा में दिखता, देख मैं गौस में कैसा दिखता हूँ, देख मैं फैजी में कैसा दिखता, देख मैं नूरी में कैसा दिखता। अरे रिसाले फज़लुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। அல்லாஹ் என்று ஞாபகம் செய், உட்கார்ந்தால் ஞாபகம் செய், படுத்தால் ஞாபகம் செய். அல்லாஹ் மறதியாளனாக இருக்காதே, அல்லாஹ் மறந்தவனாக இருக்காதே என்று சொல்லக்கூடிய அல்லாஹ் क्या बोला, तकुन मिनल गाफिलीन। அல்லாஹ் காஃபிலீன் காலை மாலையும் அல்லாஹ் ஞாபகம் செய், அல்லாஹ் மறந்தவனாக இருக்காதே என்று சொன்ன அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு தஆலா தன்னுடைய நேசர்களை பயான் செய்கிற பொழுது சொல்கிறான். அதே வார்த்தையை அல்லாஹ் சொல்கிறான், காஃபிலீன்களை நீ ஆகிவிடாதே, அவருடைய சரித்திரத்தை மறந்தவனாக நீ ஆகிவிடாதே. காரணம் என்ன தெரியுமா? அவர்களை படைத்தவன் அல்லாஹ், அந்த நேசர்களை காட்சியளிப்பவன் அல்லாஹ், ராஜா நாயகத்துடைய சூரத்தில் முத்தஜல்லியா இருந்தவன் அல்லாஹ், அவருடைய பாகுடைய சூரத்தில் முத்தஜல்லியா இருந்தவன் அல்லாஹ், பூரிநாயகத்துடைய சூரத்தில் வெளியானவன் அல்லாஹ், வைத்தியால் சூரத்தில் இருந்தவனே அல்லாஹ். या अल्लाह, अरे वली बोलते ही उसे हैं जो अल्लाह से मिला हुआ है, जुदा नहीं होता। तू वली को अलग कर रहा है, अल्लाह को अलग कर रहा है। அன்றைய வலி என்று சொன்னாலே யார் தெரியுமா? அல்லாஹ்வோட சேர்ந்து இருக்கவங்க பேர் தான் வலி. நீ வலி ஒரு பக்கம், அல்லாஹ் ஒரு பக்கம் நகர, இது என்ன அநியாயமா இருக்குங்க? अरे इसीलिए तो अल्लाह बोल रहा है, उन्हें खुद इनको याद कर रहा है ना, क्योंकि मैं इनसे दूर नहीं हूँ, ये मुझसे दूर नहीं है। इनका याद कर रहा मेरे लिए भी, उन पे एहसान करना है, तुम्हारे लिए तो
को रहमान को पहचानना। நான் அவர்கள் இருக்கிற என்பதற்காக வேண்டித்தான் என்னை எப்படி ஞாபகம் செய்வது உன் மேல கடமையோ அதே மாதிரி என் நேசர்களை நீ ஞாபகம் செய்வதும் உன் மேல கடமை என்று அல்லாஹ் சொல்றார். अब जो है औलिया के जो है तस्करे में इतना तनज़्ज़ुल में मौला आए हैं, उनके साथ जो कुत्ता होता उसका भी तस्करा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। அன்பர்களே, அவுலியாக்கள் அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லுகிற பொழுது அவுலியாக்களுடைய பின்னாடி போன ஒரு நாயை பத்தி அல்லாஹ் சொல்றான் कुरान में तस्करा हो गया। वाह वाह, समझ में आ रही है क्या है? कल्बुहुम और जरा याद करो, जरा तुम उलमा है मेरे साथ हो जाओ। सो रहे हैं क्या? हाथ उठाओ। लगे दूंगा ये खातिमा बिल खैर होना समझ रहे? अल्लाह ताला के ऊपर आगे देख रहे मेरे फैजी, मेरे फैजी के जो है ना याद में कौन जाग रहा है? இரவுடைய கடைசி சஹபான்னு சொல்றோம், மூன்றாவது பகுதி. இந்த நேரத்துல அல்லாஹ் முதல் வானத்துல இறங்கி பார்க்கறான், அடியார்களுக்கு முத்தாடி அல்லாஹ் தஆலா வந்து பார்க்கறான். அப்ப யார் யார் இது உற்சாகமா கவனிக்கிறீங்க, யார் யார் இங்க வந்து பெற்றுக்கொள்றீங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறான். அல்லாஹ் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கிறான். அல்லாஹ் ஜல்ல அந்த உணர்வோட இருந்து கேளுங்கன்னு சொல்றாரு. खाली एक मर्तबा कुत्ते का तस्करा नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं? मालूम यक़ूलु पढ़ो जोर से, यक़ूलूना सलासतुन, ये उसकी तादाद ये तीसरा है, इन्हें चौथा है। कल्ब को बोल रहा है, याद कर रहा है कल्ब को। कितने बार याद कर रहा है? कल्ब वासितुन बस काफी था ना। और काना के खत्म करा, सामिनु उनके पर नहीं बोला, साबिउन खत्म करा। जरा समझ, इसको बाद में समझाऊंगा। सबा पे खत्म किया है, जरा समझ। तरीक़त के इशारे हो रहे हैं इसके अंदर। जरा आयत पढ़ भाई, वो कौन है जरा पढ़। राबियुम भी बोलता है, बाद बोल रहे हैं कि खामिसुम, बाद वो यक़ूलूना वादुम सादिसुन सामिनुम कल्बुहुम बोल रहे हैं। रजमम बिल गैब, मौला बोल रहे हैं रजमम बिल गैब। और साबिउन पे रजमम बिल गैब ने साबियों यक़ूलूना साबियातुन। हाँ, तो ये जो है ना वो सबाई है, सामिनुम तो बोल रहे हैं। रजमम बिल गैब मार रहे हैं, किस पे बोल रहे हैं? साबियातुन पे नहीं बोल रहे हैं, सामिनुन पे बोल रहे हैं। वो खामिस में भी राबी में बोलते हैं। समझ में आ गया? तो खैर, मेरे अपने बोलने का मतलब ये है कि ये सुन्नत है। हम अपने पीर की जो है ना क्या कहते हैं, उनके जो है उस मनाना, उनकी तरक्की तकरीब करना, तस्करा करना तुम पे तो फर्ज है। इनका खालिक भी जो है तुम समझ रहे, मैं कर रहा हूँ नहीं, तुमसे करा रहा। அஸாபுல் கஹ்ஃப் இருந்தாங்களே, கோய்வாசியில் அல்லாஹ்வுடைய நேசர்கள், அல்லாஹ்வுடைய அவுலியாக்கள், அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் திருக்குர்ஆன்ல பதிவு செய்றான். அல்லாஹ் தஆலா இது பெரிய விஷயம். அவர்களுக்கு பின்னாடி ஒரு நாய் போச்சான். அந்த நாயை பத்தி அல்லாஹ் தஆலா பின்னாடி நாய் போச்சு ஒரு சொல்லி விட்டுற வேண்டியதானே? ஒரு நாய் அவங்க பின்னாடி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுற வேண்டியதானே? அல்லாஹ் திரும்ப திரும்ப சொல்றான். அதாவது அஸாபுல் கஹ்ஃபுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு என்று சர்ச்சை ஏற்பட்டது. சில பேர் 3 என்று சொல்கிறார்கள், சில பேர் 4 என்று சொல்கிறார்கள், சில பேர் 5 என்று சொல்கிறார்கள், சில பேர் 7 என்று சொல்கிறார்கள். அப்படி சொல்ல வேண்டியதானே? அப்படி சொல்றது. சில பேர் 3 என்றும் 4வது நாய் என்றும், சில பேர் 4 இல்ல 5வது நாய் என்றும், சில பேர் 7 8வது நாய் என்றும் சொல்கிறார்கள். என்ன भाई, ஒரே ஆயத்துல 3 தடவை நாய் பேர் சொல்லிட்டாங்க. ये कुत्ते का कहानी दिखता है पूरा। वाह 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 वाह। असाबे कहफ में मौला ज़ादा जो है कुत्ते का वली से जो है निस्बत रखा है। ஒரு வலி உடனே சேர்ந்து வந்த காரணத்தை அல்லாஹ் சும்மா உடனே திரும்ப அந்த பேரை சொல்றான். वली को अल्लाह से दूर नहीं करना, जुदा नहीं समझना। जहाँ अल्लाह वहाँ वली, जहाँ वली वहाँ அதனால வலி அல்லாஹ்வோட பிரிச்சு நீங்க பார்க்க கூடாது. எங்க அல்லாஹ்வுடைய வலி இருக்கிறாங்களோ அங்கதான் அல்லாஹ் இருக்கிறான், எங்க அல்லாஹ் இருக்கானோ அங்கதான் அல்லாஹ்வுடைய வலி இருக்கிறான். अब तुमसे पूछते लोग फैजी शाह साहब के पास जल्दा जो है मुरीद करा, बैठ करा, क्या मिला? तो बोलना मैं जो है खाली लालपेट में रहता था, मुरीद होने के बाद अल्लाह के आगोश में हूँ, अल्लाह के गोद में हूँ। वह हुआ माकुम आइना माकुम तुम है, ये मुझे मिला है मेरी बैठ से बोलना रही। வைத்தியநாயகத்துக்கு போன பிறகு என்ன கிடைச்சு என்று உங்களுக்கு கேட்பார்கள். சொல்லுங்க, நான் முதல்ல லால்பேட்டையில் இருந்தேன், வைத்தியநாயகத்தை கையை பிடிச்ச பின்னாடி மௌலாவுடைய மடியில வந்தேன், அல்லாவுடைய அரவணைப்பில வந்தேன், அந்த பாக்கியம் கிடைச்சிட்டு சொல்லுங்க. मैं दूर था, उन्हें अर्श पे मैं फर्श पे था,
मेरा फैजी अर्श वाले को मैं तो नहीं गया, अर्श वाले को फर्श पे लाके वो हुआ माकू महीना माकू நான் அல்லாஹ்வை விட்டு தூரமாக இருந்தேன், அல்லாஹ்வில் இருந்தார், நான் பூமியில இருந்தேன், நான் அர்ஷுக்கு போக முடியாது, அர்ஷ் வாலாவை எட்ட கொண்டு எங்கிருந்தாலும் அவன் கூட அவன் தான் இருக்கான்னு சொல்லி அவனை எட்ட கொண்டு வந்தாங்க। हमारे पीर का गौसे आदम का काम ये है, समझ में आ रही बात? गौसे आदम में गुम हो गया तो अर्श के पर भी तू भी चले जाएगा, मगर तेरे को जाने की जरूरत नहीं। क्यों जाएगा अर्श पर? अल्लाह से मिलने के लिए। उन्हें जब यहाँ आया तो अब आप देखो ये मेराज का महीना है ना, लोग जो है रसूलुल्लाह की रात को नहीं समझो तो मेराज को क्या समझते। अब आप देखो सरकारें दो जहाँ को दीदार हुआ ना, ऊपर गए बोल के तुम ना बोलते नहीं बोलते, जाहिर की बात है ना, हदीस वगैरह में आए, मगर हकीकत अपनी जगह पर है। हदीस कुरान क्या बोल रहा है? सुभानल्लज़ी अब्दिही मिनल लैल। तो अब जो है अल्लाह के दीदार करने के लिए ऊपर गए बोलता नहीं, लामका में गए बोलता नहीं। बोलो भाई, अब कुरान ही से बात करेंगे। हजरत सियासता की हदीस में जो आया है, हजरत जिब्राइल 70,000 फरिश्तों के साथ आए, सरकार को उठाए बना कर, उससे इनकार नहीं है। पहले कुरान को जो है तरजीह है ना, उसके बाद हदीस है ना। तो कुरान क्या बोल रहा है? सुभानल्लज़ी असरा है ना। तो अब जो है सरकार को सैर कौन कराया? सुभान कराया। इसमें एक जाहिर की बात है, बातिन की बात अगर मौका हुआ तो बताऊंगा। समझ में आ रही? बस सुभान कराया तो उन्हें दीदार उसका वहाँ जाके कराया। बोलवा उन्हें ले जाने, इनको रात देके गया ना, तो यहीं शुरू हुई है तो भी दीदार हो गया, वहाँ कहीं भी लेके गया। தன்னுடைய அடியாரை சுப்ஹானல்லாஹ்வாகி அல்லாஹ் தஆலா கூட்டிட்டு போனான்னு சொல்றாங்க। அவனா கூட்டிட்டு போறான், அங்க போய் என்ன காட்ட வேண்டி இருக்கு? அங்க போய் காட்ட வேண்டியல, கூட்டிட்டு போறதே நான் தான் சொல்றாங்க ஜல்லஷானு தஆலா। ये मेरा तू मेरे रसूल को नहीं समझा तो मेरा तू कैसे समझेगा? எப்படி ரசூலுல்லாஹ் நீ விளங்க நம்ம விளங்க வேண்டியது எப்படி நம்ம மேராஜ் பத்தி விளங்க முடியும்? तुम उलमा है ना, जवाब दो, मैं तुम्हारे सामने बैठता हूँ, इसको समझा दो। मैं बातों से सब तौबा कर लेता हूँ। समझ में आ रही बात? इतना समझाओ तो सही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार को अल्लाह बाबा लामका में लेके गया, बोले उन्हें खुद यहाँ लामका में आ गया। और वहाँ ले आके वो दूसरा अल्लाह तो नहीं है ना, जो असरा में वही अल्लाह है ना, यही दीदार हो गया ना। वहाँ कहीं को लेके गया, व्हाट इज द यूज फॉर दैट? क्या मतलब है जाने का? क्यों लेके गया? இங்கிருந்து மேராஜ் ரசூலுல்லாஹ் அல்லாஹ் கூட்டிட்டு போய் லாமகான் கூட்டிட்டு போய் அர்ஷ் கூட்டிட்டு போய் அல்லாஹ் காமிச்சான்னு சொல்றீங்களே, அந்த அல்லாஹ் சொல்ற நான் தான் வந்து கூட்டிட்டு போனேங்கறான்। அவன் இங்கே வந்து திருப்பி அங்க கூட்டிட்டு போறான்னு கேக்குறாங்க। இவரக்க நீங்க சொல்லுங்க, शहर का क्या माना है वो नहीं समझा तू। तेरे को शहर इसमें नहीं हुई, शहर में शहर नहीं हुई, इस वजह से सब तेरे को परेशानी है। शहर என்னோட பொருளை விளங்கல, அதனால நமக்கு இது परेशान இருக்குது। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इसी तरह हमारा जो मामला है, हमारे जो पीरा हैं हमको जो है अर्श पर भी ले जाते हैं। अब हमारे पीर हजरत ख्वाजा अजमेर फरमाते हैं, रे ये कदम मेरा यहाँ पे दूसरा अर्श पे उठा तो सीधा बोले आगे देख लो। சொல்லி காமிச்சாங்க, இது ஒரு கால் இங்க இருக்கு, இன்னொரு கால் அர்ஷ்ல இருக்குன்னு சொல்லி காமிச்சாங்க। दूसरे कदम मेरा अर्श पे होता है, पलट के अजमेर में आ जाता हूँ। क्या है ये? அஜ்மீர்ல ஒரு கால் அர்ஷ்ல ஒரு கால் இருக்குன்னு சொன்னாங்க। திரும்ப அஜ்மீர் திரும்ப வந்துறாங்கறாங்க। तो मालूम जो है हमारे जो पीरा हैं हमको तो अर्श पर ले जाते हैं, मगर सबसे बड़ा काम इनका है जो अर्श वाला था उनको यहाँ लेके आए। நம்முடைய ஷேகுமார்கள் அல்லாஹ் இந்த கமால் இருக்கு, நம்ம இத அர்ஷ் கூட்டிட்டு போகக்கூடிய கமால் இருக்கு, ஆனா அதை விட பெரிய விஷயம் அர்ஷ் वाला இங்க கொண்டு வந்தாங்க। मैं जो हमेशा तुम्हें बोलता हूँ, शायद बोला हूँ, बोलते रहूंगा इंशाअल्लाह, जो कुरान है। तुम ये समझते हैं कि मेरे नबी को मकान से ला मकान में जाने से हुई, वो भी हुई होगी रे, वो भी सानवी हैसियत है। असल में राज ये है कि अर्श वाला यहाँ नीचे आके सुभानल्लज़ी असरा बोला, ये किसी को नहीं बोला। सब मेरा ये अर्श वाला फर्श पे आया, मेरे नबी को लेके गया, ये मेरा है। रसूलुल्लाह अल्लाह पाक போனாங்க, இதான் மேராஜ் என்று எல்லாரும் பயான் செய்றாங்க।
பெருமானார் பூமியிலிருந்து அர்ஷுக்கு போனார்கள். இதுக்கு பேரு மேலாஜ் என்ன பயன் செய்றாங்க. ஆனா ஆயத்துல அல்லாஹ் அப்படி சொல்லல. ரசூலுல்லாஹ் பார்க்க அல்லாஹ்வே வேண்டாம் கருதீங்க. அவன் வந்து அல்லாஹ் கூட்டிட்டு போனா அவன் இங்க வந்துட்டா. இதான் உண்மையான அசல் மேலாஜ். अब ये हमारी जो मजलिस है इस बात को अच्छी तरह याद रखो. इसके दो रुख, सिक्के के दो रुख है. ज़ाहिर भी है, इसमें बातिन भी है. अब खाली ज़ाहिर में बोले तो बातिन वाले हमारे परेशान हो जाते. तो एक बातिन की बात भी बोल के फिर मैं आगे जाता हूँ. तो इस बात को अच्छी तरह याद रखो. तो मौला सुभान बोल रहे हैं ना, तालीम तेरे को हैदियत वहदत हुई है ना. सुभान का मिज़्दा क्या है? हैदियत है ना. अब वो बोल रहे हैं जाहिर की बात को रख दे. वहाँ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा को ले गए बोल रहे हैं ना. अब इधर आ जा, तरीक़त में आ जा, क्या है खानकाह फैज़िया में आ जा, नूरी में आ जा. देख मौला क्या बोल रहे हैं. सुभान उनको बंदन मखियन वहबब्तु नौरफा निकला फखलक़तु मोहम्मद. समझ में. अब क्या किया. अब सैर कौन कर रहा है. तुम ये समझ रहे अल्लाह ने रसूलुल्लाह को उन्हें भी साथ सैर कराना. अब देख भाई तेरे को हैदराबाद को चल मेरे साथ होना, तो मैं तेरे साथ होना ना. मेरे तेरे साथ सुभान भी साथ है. क्या बोल रहे हैं. अहदियत से निकल के वहदत में आया. वहाँ से अहदियत में मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा. याद रख मस्जिद हराम क्या है. अहदियत नहीं, अहदियत नहीं, सुभान है. निकला वहाँ से. फिर अब तेरे को जो तशबीह उसमें आना ना. अक्सा जो है वहदत है. उसके बाद हो गया नहीं. मर लामका में जाके बात होगी नहीं. खाली इशारा दे रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर समझाएंगे. ये एक बात में समझ में नहीं आती. तो कहने का मतलब ये मस्जिद हराम इस बात को अच्छी तरह से शान तशबीह की तरफ इशारा है. और मस्जिद अक्सा दूर, कितना दूर. तशबीह से निकल जाना. तशबीह से निकल जाना. अक्सा दूर दूर. जब मिलेगा उनका नूर. இதை விளக்கமாக சொல்ல முடியாது, சுருக்கமாக சொல்ல கேட்டுங்க. எஜமானுடைய பெரிய அசார் எஜமா சொல்லி காட்டுறாங்க. அதாவது மஸ்ஜிதுல் ஹராம் என்பது சுருக்கமாக விளங்க ஷான் தஷ்பீஹுடைய ஒரு இஷாரா. ஒரு இஷாரா. மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா என்பது ஷான் தன்ஸீம் को ஒரு இஷாரா. अलहमदुलिल्लाह तस्बीह இருந்து அல்லாஹ் தஆலா दूर की मस्जिद தூரமான இடம் என்று அல்லாஹ் தன்ஸீம் பக்கமாக கொண்டு போறான். இந்த ஒரு இஷாராவா இருக்கு. अल्लाह नाज़ இந்த நாளை விளக்கறேன்னு சொல்றாங்க. आप समझ में आ गई. तो अब जो है इस बात को अच्छी तरह याद रखो. लोग ये बोलते हैं कि जो है तुमको सिलसिले से क्या मिला, पीर से क्या मिला. समझ में आ रही बात. असल में वाक़या क्या है. जो बाहर वाले होते हैं उनको मालूम नहीं होता. मजनू है ना, सारे सो रहे हैं. क्या देखो बाजू वाले को देखो. देखो बाजू वाले को देखो. मजनू से पूछे कि लैला इतनी काली है, बदसूरत है, इस पे तू कहीं को आशिक हो गया. मजनू ने கேட்டாங்க லைலா இவ்வளவு கண்ணுங்கறேன் இத போய் நீ எப்படி லவ் பண்ண அப்படி मिसाल दे रहा हूं. उदाहरण. हाँ उदाहरण. तो बोले अब मजनू उसको जो है क्या जवाब दिया. पहले जो तेरे आँखा हैं, तेरा नाम क्या है. अब्दुल करीम की आँखा हैं. पहले ये दोनों आँखों को बदल दे मजनू से. पहले ये मजनू की आँखें बना, फिर उसके बाद लैला को देख. तो जब लैला तेरे को समझ में आएगी. லைலா கண்ணங்கரேன் இருக்குமா. அது போய் மஜ்னூ ரொம்ப காதல் கொண்டு வைத்தியம் குடிச்சார்ல. எப்ப அது அவ்வளவு அழகான பொண்ணு இல்லையா, அதை போய் லவ் பண்ணிருக்கேன்னு கேட்டிருக்காங்க யாராவது போய். நீ முதல்ல உன் கண்ணை மாத்தி ஏன் கண்ணை வச்சு பாரு. அப்பதான் லைலாவோட அழகு உனக்கு தெரியும்னு சொன்னாங்க. समझ में आ गई. इसी तरह जो फैजी का जो सोबत में नहीं रहा, उनका फैज नहीं उठाया, तो उसको बोलेगा क्या बात है, आलिम नहीं है, बोला नहीं है. आलिमों का बाप होता, आलिम तो तू भी होगा. யார் ஃபைஸனாக்குரிய அவங்க கூட இருந்து அந்த இன்பத்தை தேனை பருகவில்லையோ, அவரது ஃபைஸான பெறவில்லையோ, என்ன அவர் பெரிய ஆலிம் கூட இல்லை. இது சாதாரணமாக அவர்கள் ஃபைஸனாக சாதாரணமாக பார்க்கலாம். அவங்களோட இருந்து அந்த ஞானங்களை பருகியவர்கள் பார்க்குற கண்ணு வேறங்கிறாங்க. याद रखो तुम आलिम भी है, मैं भी जाहिर के सामने आलिम है, मगर फ़ख्र नहीं है मेरे को. नहीं समझ में आ रहे. इसके अंदर जो है फ़ेख है फ़ख्र. ये फ़ेखा फ़ख्र जो उलमाए ज़वाहिर के बाद फ़ख्र के साथ फ़ख्र भी है.
कुछ भी नहीं है उनके पास। हम तो फख्र से फख्र करने वाले, तो अब गुलाम तो फख्र से फख्र करने वाले। वो इज़ा तम्मल फ़ख्रु फ़हुवल, क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह नारे तकबीर। अरे याद रखो, आलिम उसे बोलते हैं जो कलामुल्लाह का ज़ाहिर पढ़ाता है, आरिफ वो होता है इन्हें कलामुल्लाह पढ़ाता है, उन्हें वजहुल्लाह को दिखाता है। फैजी का काम वजहुल्लाह को बताना है, करीम अब्दुल करीम जुबैर का काम कलामुल्लाह पढ़ाना है। ये बच्चे काम करने के हैं। அல்லாஹ்வுடைய கலாமை குர்ஆன் ஷரீஃபை ஓதி காட்டிக் கொண்டிருப்பது ஆலிம்களுடைய வேலை, அல்லாஹ்வுடைய ஸாத்தோடு சேர்த்து வைப்பது, வஜ்ஹுல்லாஹோடு சேர்த்து வைப்பது ஆலிம்களுடைய வேலை। जिसको तू कलाम में समझता है वो तेरे अंदर कर देने वाले कलाम। எதை நீ கலாமில் விளங்குதையோ அதை உன் கல்வில மௌலா கொண்டு வந்து அங்கேயே விளக்கம் தரக்கூடியவர்கள் தான் ஆலிம்களாக இருக்கிறார்கள்। समझ में आ रही बात? आलिम खुदा से दूर करता है, जहन्नम को जो है डराता है। हम जहन्नम से नहीं डरते। अभी बच्चा तुम्हारे सामने हदीस बोला तो अल्लाह ताला मिशकात की हदीस में पिल्ली, उनको तो पिल्ली ज नहीं है मगर सब है उनको यदुल्लाही पुराने, वो तो हदीस बोल रहा है यहाँ यदुल्लाही फौका ऐदी में है ना। अल्लाह को वजहुल्लाह भी इन्नी वजह तू वजह आई न मत वल्लू, अल्लाह को वजह कहाँ है बोला मुशरिक नहीं है, बोला काफिर बोल वहाँ कुरान का इनकार है ना। अल्लाह इन्ने मत वल्लू वजहुल्लाह जो है वजहुल्लाह वाला कुछ बोल रहा, समझ में आ रही बात? तो अगर जो है ना अगर है बोला तो वजह मुशरिक हो जाएंगे, कोई एक वजह में किसी शरीक कर देगा मुशरिक। अब तेरे को ये शिर्क और जो है ना कुफ्र से निकालने वाला फैजी। சுப்ஹான் அல்லாஹ் அன்பர்களே, இதுவும் சொல்றாங்க ஆலிம்கள் இருக்கிறாங்களே ஒரு நரகத்தை காட்டி पढ़ाने ஆலிம்கள் அல்லாஹ் பக்கம் நெருக்கி வைப்பார்கள்। ऐसा बोल कलामुल्लाह को पढ़ाने वाला आलिम, समझ में आ रही? आरिफ कौन है? वजहुल्लाह को दिखाने वाला आरिफ। கலாமுல்லாஹ் சொல்லித் தரக்கூடிய ஒரு ஆலிம், வஜ்ஹுல்லாஹின் பக்கம் கொண்டு போய் சேரக்கூடிய ஒரு ஆலிம்னு சொன்னதுமா நடுவுல ஒரு செய்தி சொல்லிட்டாங்க। அல்லாஹ் குர்ஆன்ல ஐனமா துவல்லு ஃபஸம்ம வஜ்ஹுல்லாஹ், நீ எங்க திரும்பி பார்த்தாலும் உங்க அல்லாஹ்வுடைய முகம் இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டான்। குர்ஆன்ல அல்லாஹ்வுக்கு முகம் இருக்குன்னு சொல்றான்। இப்ப யாராவது அல்லாஹ்வுக்கு முகம் இருக்குன்னு ஆமா முகம் இருக்குதுன்னு சொன்னா ஷிர்கா போய்டும்। ஏன் முகம் இன்சானுடைய சிஃபத், அது சிஃபத் இன்சான், அது போய் அல்லாஹ்வுக்கு சொன்னா ஷிர்கா போய்டும்। இல்ல அல்லாஹ்வுக்கு முகம் இல்லைன்னு சொன்னா குஃப்ரா போய்டும்। குர்ஆன்ல முகம் இருக்குன்னு சொன்னா அல்லாஹ் ஜல்லஷானு தஆலா அப்ப குஃப்ர் ஒரு பக்கம் ஷிர்க் ஒரு பக்கம், ரெண்டுக்கும் மத்தியில உள்ள வழியை காட்டி தரக்கூடியவர்கள் தான் குஃப்ரும் இல்லாமல் ஷிர்க்கும் இல்லாமல் கொண்டு तौहीद हासिल होना, तौहीद होना பேர் தான் ஆலிம்। अल्लाह को जो है वजह भी साबित करना, तंजीम में जो है नफी भी करना, ऐसा करना, तशबीह और तंजीम को समझना, ये खत्मों में किसी को குஃப்ரை விட்டு உன்னை பாதுகாத்து ஷிர்கை விட்டு உன்னை பாதுகாத்து இரண்டுக்கும் மத்தியில் தௌஹீத் அவசரத்தின் பக்கம் உன்னை கொண்டு வரக்கூடியவர்கள் தான் ஆலிம்களாக இருக்கிறார்கள்। वाह वाह वाह, समझ में आ गई? बेशक बच्चा जो तुम्हारे सामने हदीस बयान करा, पिंडली को डालेंगे हदीस से, दूसरी हदीस में अल्लाह ताला अपनी जो है जहन्नम में रख देंगे। रिजुल का भी लफ्ज़ आया है, ये पिंडली को जो है क्या बोलते हैं अरबी में? साख बोल के आया है। अल्लाह ताला साख रख देंगे। तो अलखत बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तो नहीं बोलिए अलखत बस बस, इसके सिवा कुछ भी नहीं। समझ में आ रही बात? अल्लाह ताला तो हुक्म से उसको करना था, पिंडी कहीं बुलाई तो समझने की जरूरत है ना भाई। अल्लाह के हुक्म से कुन फयकुन होता ना, खामोश बैठ, जानने में बोलता नहीं पिंडी ला। சுப்ஹானல்லாஹ் எஜமான் அன்பர்களே, எஜமான் அவர்களுடைய மகனார் சற்று முன் பேசும்போது சொன்ன ஹதீஸை எஜமான் திரும்ப ஞாபகப்படுத்துறாங்க। சொர்க்கத்துல அல்லாஹ் தஆலா எல்லாரையும் போட்டுருவான், சொர்க்கத்துல எல்லாத்தையும் போட்டு நரகத்துல எல்லாத்தையும் அல்லாஹ் போட்டுறான், பிரிச்சாச்சு। இப்ப அல்லாஹ் நரகத்தை பத்தி கேட்பானா, யௌம நகூலு ஜஹன்னம ஹலிம் தலஅதி, என்ன வயிறு நிறைஞ்சிச்சா போதுமா? நரகத்தை பார்த்து அல்லாஹ் கேட்பானா, ஃபதகூலு ஹல் மின் மஸீத், இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு சொல்லிட்டே இருக்கும்। எவ்வளவு போட்டாலும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் சொல்லிட்டே இருக்கும் நரகம்।
இப்ப ஹதீஸ் வருது கடைசி அல்லாஹ் தஆலா தன் காலை அங்கே வைப்பான். भाई उसको बनना था நரகம் என்ன சொல்லுமா கத் கத் போதும் போதும் சொல்லி வாய முடிக்கும். அல்லாஹ் என்ன கேக்குறாங்க, ஏன் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானு தஆலா நரகத்தை பத்தி ஏன் கால் வைக்கணும், என்ன சும்மா கேட்டு தொந்தரவு பண்றீங்க வாய் மூடு அப்படின்னு அல்லாஹ் உத்தரவு போட்டு வாய் மூடி இருக்கு நரகம் திரும்ப கேட்டிருக்காது. அது வாய் மூடு என்று அல்லாஹ் உத்தரவு போடுவான், நரகம் வாய் மூடிக்கொள்ளும் ஹதீஸ்ல வரல. அல்லாஹ் தன் காலை வைப்பான், நரகம் போதும் போதும் சொல்லிடும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேக்குறாங்க. तो उनको जो है अल्लाह को जो है पिल्ली नहीं है, அல்லாஹ் கால் கிடையாது, अल्लाह को काल करिया दो, கிடையாது, अल्लाह को जो है दिया दो करिया दो, கை கிடையாது, नहीं है बोला तो काफिर, है बोला तो मुशरिक. கை இல்லைன்னு சொன்னா காஃபிர், கை இருக்குன்னு சொன்னா முஷ்ரிக். अब यदुल्लाही फौका ऐदीहिम बतर रिज़वान में कुरान बोल रहा है, समझ अगर अल्लाह का बोला, अल्लाह को तो यद नहीं है बोला काफिर. वहाँ देखने में तो रसूलुल्लाह का हाल है, अब तेरे को समझना है, ये समझने वाले ये दोनों को समझे तो तौहीद आपको आती. नहीं समझ में आ रही बात. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना था, वाव को निकाले अल्लाह मियाँ. ला इलाहा इल्लल्लाह லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்ங்கிறது முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ், இன்னும் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வரணும். ஆனா வாவ் அல்லாஹ் எடுத்துட்டான். हाँ बोले वाव में से अरबी के हिसाब में अरबी जमाने है ना ஒரு ஜும்லா ரெண்டு ஜும்லா கொண்டு வரும்போது வாவ் கொண்டு வரணும். वाव अल्लाह में ना कोने निकाल इसको, निकाल दिया अल्लाह ताला, इतना வெளியே वाव को निकाले समझो प्लीज. डैश 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 नहीं समझा, वाव को निकाला कौन है वाव कौन है समझ में रहा. वाह भी बहुत से शुरू होगा, वहाँ भी बहुत से शुरू होगा. जी सर जी सर नहीं जहाँ गया कुछ ना कुछ करता जी सर अलीफ रहना. हां वाव को निकाले बेशक. वाह 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 बोल वाह நண்பர்களே என்ன சொல்றாங்க, வாவ் என்பது வாவ் ரெண்டுக்கு பிரிக்கக்கூடிய வாவ் இருந்து பாத்தீங்களா, அதை எடுத்து அல்ல ரெண்டே ஒண்ணா சேர்த்துனா பாருங்க. லா இலாஹ இல்லல்லாஹு முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். அவங்க அல்லாஹ் வந்து முஹம்மது குர்ஆன் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு அல்லாஹ் இறச்சி விட்டான், அல்லாஹ் பிரிக்கலன்னு சொல்றாங்க. वाव को निकाला और वो कौन वाबी, அந்த வாவ் वाव को जो है वाव है ना. अब उन्हें क्या बोलता अल्लाह का नाम वहाब है, वहाब है, वहाबी नहीं है ना. ये वाव किससे शुरू हो रहा है, वहाब यहाँ तो नहीं गाय में कहीं भी तोड़ता उन्हें मुड़ जाएगा, और उसको निकालो. अल्लाह रसूल के दरमियान ये वाव नहीं रहना. समझ गया डैश. வாவ் எவ்வளவு வாவ் ஆரம் எடுத்து வாவ் அல்லாஹ் வாவ் எடுத்துட்டாங்க, அல்லாஹ் ரசூல் வந்து வாவ் இருக்கக்கூடாது அதை எடுத்துட்டாங்க. अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह. समझ में आ रही बात. अपने को औलिया अल्लाह बना वाला बनाया है, वाह 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 वहाबी में अपना शुमार नहीं करा. समझ में आ रही बात. ना कभी तुम रहे थे नहीं बाजू वाले को देखो, उसके जेब में से पैसे निकाल ले. யாரும் தூங்கினா அவங்க ஜோபுக்கு पैसा निकाल. எடுத்து हाँ अब नहीं सोता. हाँ सब जेबा देख रहे देखो. हाँ तुम रे रोज सोता आदमी तुम रे, अल्लाह देख रहा है. ये वीडियो भी चल रहा है, अल्लाह का वीडियो भी चल रहा है. ये वीडियो में तो निकल जाएगा, वो वीडियो में से नहीं निकल सकता. हाँ और जो है बच्चा जो है हदीस तुम्हारे को बोला, अल्लाह ताला हुक्म से भी जो है दो तक को नार को खामोश बोल सकते हैं. कौन सा बैकुन है ना, ये पिंडली कहीं बुलाया वहाँ क्या राज है. फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हिकमा हकीम का नहीं जाता, ये हकमुल हकीम ही नहीं. उसका फिर ये पिंडली की कहीं बुलाया, पैरा बीच में ला. मौला जो है तो क्या बोलते हैं अपने पहलवानी जबान में अड़ंग मार दिए बोलते. अच्छा खैर तो आदमी को ऐसा लात मार के सीता गिरा देते हो, पैरों से गिराते हैं ना. नहीं समझ, मगर पैरा ठहरने की जगह है, पैर नहीं तो आदमी ठहर नहीं सकता. क्या बता रहे मौला देख इसके अंदर. नहीं समझ में आ रही बात. अगर मौला उसको बोलते तो जहन्नम भी एक मखलूक है ना. मेरे साथ हो जाओ, सो रहे हैं क्या. जहन्नम भी एक मखलूक है ना. अल्लाह ताला उसको पैदा किया या नहीं किया, मगर जल रही है ना. अबू जहल को जला रही है, अब मोदी को भी जलाएंगी, सबको जलाएंगी. समझ में आ रही बात. तो को जितने भी बदमाशा है सबको जला रही नहीं जला रही उन्हें, मगर वो मखलूक है
अल्लाह की मखलूक है ना जहन्नम, मगर रसूलुल्लाह की जो है जुज़ है ना। बोल भाई, रसूलुल्लाह का जुज़ है ना, उन्हें क्या गुनाह करी? तो उन्हें बोलेगी कि मौला और कुछ है, कुछ नहीं है रे, असल जो तेरा वो खुद तेरे पैर का रखेंगे। समझ ले आप तो तेरी बोल आके अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आया? जहन्नम भी जुज़े मोहम्मद है ना, बेशक जुज़े मोहम्मद है। मेरे रसूल की पिंडली को रखा जाएगा जहन्नम में। तो जब जहन्नम बोलेगी अब खामोश। इस तरह से इस बात को याद रखो, जहन्नम को भी सुकून रहमतुल्लिल आलमीन। நரகம் அல்லாஹ்வுடைய மக்லூக். இன்னும் வேணும் கேட்டே இருந்தா வாய் மூடி சும்மா இருந்தா வாய் மூடிக்கும். திரும்ப கேட்குமா? கேட்காது. ஏன் அல்லாஹ்வுல காலை வைப்பான், நரகம் வாய் மூடிக்கொள்ளும் என்று ஏன் சொன்னார்கள்? நரகத்துக்கு இப்ப சுக்கூன் இல்லாம போயிடுச்சு, நிம்மதி இல்லாம போயிடுச்சு. இன்னும் வேணும் பறக்கும். இப்ப எஜமா சொல்றாங்க, நரகமும் ஜுஸே நூரே முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், அதுவும் ஜுஸே முஹம்மது. இப்ப அதுக்கு நிம்மதி ரசூலுல்லாஹ்வுடைய காலை வைக்கிறவங்க. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலை வைத்த உடன் தான் நரகத்துக்கு நிம்மதி ஆயிருது. ஏன் அதுவும் ஜுஸே முஹம்மதா இருக்கிறது. பெருமானார் எப்படி சாரே காயினாத்துக்கு ரஹ்மத்துல்லில் ஆலமீனா இருக்கிறாங்களோ, நரகத்துக்கும் ரஹ்மத்துல்லில் ஆலமீன், நரகத்துக்கும் ரஹ்மத் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி तो क़यामत के दिन वो भी खामोश हो जाएगी। ரசூலுல்லாஹ்வுடைய புனித பாதங்களை வைத்தவுடன் நரகமும் நிம்மதி அடைந்து விடும், அதுவும் வாயை மூடிக்கொண்டாங்க. दूसरी हदीस भी आई है ना, जब सारे जहन्नम वाले जन्नत में चले जाएंगे तो रसूलुल्लाह खुद जहन्नम में जाएंगे, देखेंगे कि मेरा कोई उम्मती है क्या। अभी हदीस को हदीस से मिला ले जरा। அன்பர்களே, எஜமா சொல்றாங்க, அது இன்னொரு ஹதீஸுக்கு ஆதாரமா சொல்றேன் கேளுங்க. எல்லா நரகவாதியும் நரகத்துல போட்டாங்க, சொர்க்கவாதி சொர்க்கத்துல போட்ட பின்னாடி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நரகத்துக்கு ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வருவாங்க. எங்கேயாவது உம்மத் சும்மா கிடக்குறாங்களான்னு பார்க்கறதுக்காண்டி நரகத்திலே பெருமானார் கால் வைப்பார்கள், உள்ளே செல்லுவார்கள், ஒரு ரவுண்டு போவாங்க, போய் பார்த்துட்டு வருவாங்க. அப்ப ரசூலுல்லாஹ் கால் பட்ட உன்னதான் நரகத்துக்கே நிம்மதி வருதுங்கிறாங்க. तो तुम्हारे को ये बात भी समझ में आ रही है कि मेरे रसूल हाथ भी रख सकते थे। ये समझ में आ रही, जहन्नम को उसकी सारी अपनी कमादत ताकत को मेरे रसूल ठोकर से खामोश उठा दिए। அல்லாஹ் கையை வச்சான்னு சொல்ற பாருங்க, காலை வைத்தார்கள். ஏன் காலை சொல்றாங்க? அந்த நரகத்துடைய பிரம்மாண்டமான நரகத்துடைய அந்த உக்கிரத்தனத்தை எஜமான் ஒரு கால ஒரு தட்டு நேரமா அடக்கிட்டாங்க. கால் எட்டு அடக்கி அதை खामोश आकिटांग सरकार ठोकर मार के बोले। हजरत उमर के जमाने में जलजल आ गया, लात मार के बोले खामोश। உமர் ரலியல்லாஹு காலத்துல பூமி நிலநடுக்க பூகம்பம் ஏற்பட்டுச்சு, பூமி குலுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. உமர் நாயகம் பூமி பார்த்து ஒரே உத, நான் நிக்கிறேன் நீ வந்து குலுங்கிட்டு இருக்கறியான்னு கேட்டா பூமி नहीं ऐसा कदम मार के ठोकर मार के बोले। क्या उमर शरीयत मोहम्मदी को और रसूलुल्लाह के जो है उसवे को यहाँ पर जो है जारी नहीं किया है, क्यों हल रही है? खामोश रहे तो खामोश। என்ன உமர் உன் மீது இருந்து அல்லாஹ் ரசூலுடைய ஹுக்குமை நிறைவேற்றவில்லையா, நீ ஏன் துடிக்கிறேன்னு கேட்டாங்க. ஓய் உத விட்டாங்க, காலால அடிச்சாங்க सरकार, உடனே பூமி குலுங்குறது நின்று போச்சுங்கறாங்க। इसी तरह जहन्नम भी और दियो तो उसके अंदर 2 in 1 है। ये तो जो है असल के और जो है ना क्या कहते हैं जुज़ और कुल की बात भी पूरी हो गई और बोले कि ज़्यादा नहीं मांगना, खामोश ठोकर मारूंगा। कितने को जलाएंगी? இதுக்கு மேல கேட்டேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அடிதான் உங்களுக்கு காலால வச்ச உடனே நரகம் அடங்கி விட்டது நிஜமா சொல்லிக்க। சுப்ஹானல்லாஹ், बात समझ में आ रही है? तुम रेवा नहीं लग रहा, हाथ उठाओ। नारे तकबीर, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अब हमारे पीरा हमारे को क्या देती? फैजानी है ना भाई, बेशक फैजानी फैजी है ना। बेशक। तो अब जो है तुम्हारे को बच्चा तो कुछ बोला तुम्हारे सामने, अब कुछ चीज़ें तुम्हारे को मैं बोल देता हूँ जो उनसे भी पूछो। ये अगर तुम्हारे पास है तो हम फैजी को छोड़ के तुम्हारे मुरीद हो जाते हैं। हमारे को बताओ वाह वाह वाह, क्या बात। तो अब जो है ना उनसे ये पूछना, नमाज तो पढ़ता है ना आलिम है, क्या नाम है तेरा? चलो गए बात। असद अहमद, असद अहमद, असद यानी असद, असद सीन आइन दाल, सआदत से अलिफ सीन आइन दाल, असद
भाई शहादत से है ना शहादत से, जी सर। हाँ, वरना मैंने असद बोले तो जो है शेर का माना शेर से। टाइगर, तो मैं बोला इंसानों में ये टाइगर आ गया क्या देखता हूँ। हाँ? असदुल्लाह भी है ना, ये टाइगर भी आता है। रसूलुल्लाह क्या होता है? असदुल्लाह व असदुर रसूल। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, अब ये हमको पूछते हैं कि भाई ना उनको क्या मिला। मैं खाली इशारा दूंगा, जवाब नहीं दूंगा उनको पूछने के लिए, तुमको हिसाब बाद में बताएंगे। अब दोनों बात बता दी तो ये क्या भाव वो क्या बात बोलता हूँ, उसको लाना पकड़े टूटे पे बनना, ऐसा समझ में आए बात। जी। तो जब जो है ना अल्लाह अपनी की दे, अब जैसे तो तेरे पास अगर के कोई भैंस है तो उसको चारा डालते ना, कहाँ डालते? रास्ते में हमने घी तो डाल देता नहीं, ला के उसको बनता, इसके बाद चारा डालता। जी। जहाँ बोले वहाँ नहीं डाल देता, ला के पहले बनना। अब समझ उसको क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले बना तो फिर उसको चारा डालना, जब तक नहीं डालना। वाह 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 क्या समझ वाह 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 அன்பன் நிஜமா சொல்றாங்க. இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன், உலமாக்கிட்ட போய் கேளுங்க, ஆனா விடை சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா விடை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா வந்து இங்க நம்ம கையில கட்டு போட்டு தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா ஒருத்தர் மாடு வளர்க்குறாரு, सीधा बैठ, மாடு வளர்க்குறாரு, மாட்டுக்கு தீனி தெருவில் போட மாட்டாரு. बंद वाले को मैं बोलाना, उसकी जेब में पैसे निकाल ले, सरकार बोले बोलो। अब देखते रहता हूँ, सोता नहीं सोए। हाँ, उठो बोले तो बोल के फिर सो जाएगा, पैसे के लिए नहीं सोए। हैं? चल, अब जरा एक दो बातें उनके लिए मैं बोलता हूँ, उनसे पूछो। ईशा की नमाज पढ़ लिया ना? सब पढ़े ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर वाले भी पढ़े, बाकी वाले भी पढ़े। है? रुकू में पहले क़याम है, उसके अंदर तो तिलावत है, फर्ज है। अब रुकू में गया, रुकू में सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम सुबह 3 बार 5 बार 7 बार पढ़ना है ना? ये जो तस्बीहात है, फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है। तुम आलिम में जवाब दो, क्या फ़र्ज है? रुकू फ़र्ज है या तस्बीहात फ़र्ज है? रुकू फ़र्ज है, तस्बीहात सुन्नत। हैं? रुकू है ना? फिर जबकि नमाज कुरान की आयत ये बोल रही है अक़ीमुस सलाता लिज़िक्री, वो तो फ़र्ज ही नहीं है ना। अब तुमसे एक मसला पूछता हूँ, अगर कोई आदमी रुकू में सुबहाना रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़ा, नमाज होती नहीं होती? सजदे में सुबहाना रब्बियल आला नहीं पढ़ा, हो जाती ना? तशहुद में भी दुरूद इब्राहिम और जो है वो पढ़ना वाजिब है, नहीं समझ में आ रही बात? सुन्नत है। तशहुद में खाली बैठना, कायदा करना फ़र्ज है। नीचे से लेके ऊपर तक कहीं भी जो है कोई तस्बीहात नहीं है। नहीं समझ में आ रही बात? हाथ है, हाथ है नहीं? रुकू किसे बोलते हैं? खाली झुकने का नाम है, ये झुकने का नाम है ना? इसको फर्ज करा अल्लाह कि जाहिर ये रुकू है, मगर अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के ज़रिए से सहाबा को रुकू का क्या माना बताया? क्या माना बताया बा? सजदे का माना क्या बताया? क़याम में क्या है? इन्नी वज्जहतु तो तेरा चेहरा रसूल, तेरा चेहरा भी अल्लाह के चेहरे से मिलना है कि नहीं मिलना है? फिर अब इसमें भी अल्लाह का चेहरा हो जा रहा, तेरा भी चेहरा हो रहा, मिलाया। बोल भाई, जब चेहरा नहीं मिलाया, नीयत ही तेरी बेकार हो गई ना। तौजिया में वजह धर्म दोनों का चेहरा मिलना है। और उसके बाद जो है रुकू में गया, रुकू का माना हदीस में क्या बतलाए गए? और पहले क़याम में चलो, जब सरकारें जो जहाँ इमामत के लिए ठहरते तो सबू सुबूबकुम इन्ना सुबूबती सलाती इक़ामती सला, इधर भी ये बोलते। उसके बाद वो इन्नी लारा खुशूअकुम, बुखारी की हदीस है, मेरी किताब में है, वो इन्नी लारा खुशूअकुम वो खुशूअकुम क्या मतलब है? ला सलाता इल्ला बि फातिहतिल किताब, ला सलाता इल्ला बि हुजूरिल कल्ब है ना? कल्ब किसे बोल रहा है?
रसूलुल्लाह ज़ाहिर में भी नमाज रुकू सजदा वगैरह बताए, खल्क़ को कैसे पहले खल्क़ की भी तालीम दिए और खल्क़ को कैसे हाजिर करना वो भी बताए। अब जो है तू तो मुसल्ले पे हाजिर हो जाता है, सूरह फातिहा पढ़ लेता है, मगर जो है खल्क़ को कैसे हाजिर करना ज़रा ये बता दे। நண்பர்களே, எஜமான் சொன்னாங்க, இப்போ தொழுகையில் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா ருக்கூஉ சுஜூது எல்லாம் நமக்கு ஃபர்லாக்கி இருக்கிறான். அதே மாதிரி கியாமு ருக்கூஉ சுஜூது அத்தஹியாத் எல்லாம் ஃபர்லாக்கி இருக்கிறான். இப்போ ருக்கூல போறது ஃபர்து. ருக்கூல சுப்ஹான ரப்பியல் அஸீம் சுப்ஹான ரப்பியல் அஸீம் ஓதுறோம் இல்லையா, அது ஃபர்து கிடையாது. அதே மாதிரி சஜிதால போகிறதுக்கே ஃபர்து. சுப்ஹான ரப்பியல் அலா சுப்ஹான ரப்பியல் ஓதுறோம் இல்லை, அது ஃபர்து இல்லை. அப்போ ஒரு மனிதர் ருக்கூல சுப்ஹான ரப்பியல் அஸீம் ஓதாம ருக்கு செஞ்சாலும் ருக்கு கூடிக்கும், சுப்ஹான ரப்பியல் அலா ஓதாம சஜிதா செஞ்சாலும் சஜிதா கூடிக்கும். வெறும் குனிஞ்சாரு நிமிந்தாரு சஜிதா போனாரு தொழுவு கூடிரும். நிஜமா கேட்குறாங்க, அல்லாஹ் தொழுவை கடமையாக்குறதே திக்ருல்லாஹ் தானே. அகிமிஸ் ஸலாத்தல் திக்ரி, என் ஞாபகத்துக்காக என் திக்ருக்காக தான் தொழுவுன்னு சொன்ன அல்லாஹ் தஆலா, இப்போ திக்ரு இல்லாமல் எப்படி தொழுவு கூடுச்சு? சுப்ஹானல்லாஹ் இல்லை, அல்ஹம்துலில்லாஹ் இல்லை, நிமிந்தாரு குனிஞ்சாரு அத்தஹியாத்துல உட்கார்ந்தாரு தொழுவு கூடிரும். அது எப்படி கூடுச்சு? இந்த கேள்வி அவங்கள்ட்ட போய் கேளுங்கிறாங்க சர்க்கார் நாயர். सजदा क्या है? मा यकूनु लब्दु अक़रबु इलल्लाहि मा यकूनु फिस सुजूद। बंदा सबसे ज़्यादा अल्लाह से उस वक्त करीब होता है जबकि वो जो है सजदे में होता है। हुआ करीब अल्लाह से। தொழுகையில சஜிதாவுக்கு மனிதன் போகிற பொழுது எல்லா நிலைகளை விட சஜிதாவுக்கு செல்கிற பொழுது அல்லாஹ்வுக்கு மிக மிக நெருக்கமாக அவன் ஆகிவிடுகிறான் என்று பெருமானார் சொன்னார். அப்படி நெருக்கமாக ஆனோமா தொழுகையில் நாம? कुरान में अल्लाह ताला में आयत नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना, पे वाजिब हो जाती है, सजदा कर मेरे करीब हो जाए ना। जी हाँ, मगर रुकू कर मेरे करीब नहीं बोला, वर्गहु मारा कहीं बोला है। नहीं समझ में आ रहा? அல்லாஹ் குர்ஆன்ல நீங்க சஜிதா செய்யுங்கள் அல்லாஹ்வை நெருங்குங்கள்னு சொன்ன அல்லாஹ் தஆலா, ருக்கு செய்யுங்கள் அல்லாஹ்வை நெருங்குங்கள்னு சொல்ல, ருக்கு செய்பவர்களோடு சேர்ந்து ருக்கு செய்யுங்கள்னு சொன்னா. ஆனா சஜிதாவை சொல்லுகிற பொழுது அல்லாஹ் தஆலா சஜிதா செய்யுங்கள் அல்லாஹ்வை நெருங்குங்கள்னு சொல்லியிருக்கான் அல்லாஹ் தஆலா. और सारी नमाज में सजदे दो, एक रुकू, समझ में आ रही है? और क़याम भी एक, दो सजदे। ये दो सजदे क्या है? ये सारी चीज़ें तुमको समझना है ना। अगर समझना है तो फिर के बाद आओ, नहीं समझना है तो बस वैसे ही पढ़ो जैसा पढ़े नमाज। समझ में आनी बात? तो अब हम आपको ये बोल रहे हैं कि जब तुम सजदे में जाते हैं, हदीस तो ये बोल रही है, कुरान ये बोल रही है कि बंदा अल्लाह सबसे करीब होता है। तो सजदे में जब तुम जाते हैं रुकू के मुकाबले में अल्लाह से करीब होना ना, अगर नहीं हुआ करीब तो तेरी नमाज नहीं हो रही है। அன்பர்களே, தொழுகையில ருக்கு ஒன்று தான் இருக்கு, கியாம் ஒன்று தான் இருக்கு, சஜிதா ரெண்டு சொல்லிட்டாங்க அல்லாஹ் ஸுப்ஹானஹு வ தஆலா. ஏன் ரெண்டு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்துச்சு அல்லாஹ் தஆலா? ஏன் ரெண்டு செய்ய வச்சா அல்லாஹ் தஆலா? அப்ப இந்த கியாமை விட ருக்குவை விட சஜிதாவிலே மிக அதிகமாக அல்லாஹ்வை நெருங்குவது கடமையா இருக்கு ஒவ்வொருத்தர் மேலேயும். बात समझ में आ गई? तो अब जो है हम तुमको ये समझाना चाह रहे हैं, हम मेरे साथ हो जाओ। तो मालूम ये हुआ कि सारी नमाज में न सजदे में तस्बीहात फ़र्ज नहीं है, सुन्नत है। अगर सुन्नत का मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर फ़र्ज नहीं है, रुकू में भी नहीं है। मगर क्या फ़र्ज है? झुकना रुकू फ़र्ज है, फर्ज है, सजदा फर्ज है। समझ में आ रही बात? जी हाँ, अब मेरे साथ हो जाओ। जी जी। अशरफ मखलूक़ात आप है ना, हाँ। हाथ उठाओ। मलाइका से भी जो है ना तुम पढ़े हुए हैं ना, जी हाँ, अशरफ मखलूक़ात है ना, जी मगर तुम जो है अक़ाइद नसब भी पढ़े हैं ना। जी जी। एक शराब पीने वाला भी जिब्राइल से बड़ा हुआ है। क्या बोले? क्या है न तभी चलोगे? नहीं वैसे नहीं सकते। फिर क्या है? एक फार्मूला है, उनमें जो सबसे बड़ा है, हमें हमारे जो रसूलुल्लाह के औलिया है, अनबिया है, वो उन सबसे ये बड़े हुए हैं। बेशक वो दर्जाबंदी है, जैसे जैसे वो नीचे आएंगे और वो जो है ना, और आखिर में जाके वो मलाइक हैं। वो शराबी कबाबी आदमी मलेगा मलाइक से अच्छा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? ये फार्मूला है, अकीदा है, इसके बगैर नहीं हो सकता। तो क्या बात मालूम हुई? तस्बीहात अपनी जगह पर फ़र्ज नहीं है, मगर क्या है? रुकू फ़र्ज है, क़ियाम फ़र्ज है, सजदे दो फ़र्ज है, और क्या है? तशहुद में कायदा है, बैठना फ़र्ज है। तो क्या बात मालूम हुई? फरिश्तों से तुम कैसे पढ़े?
क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास, क्या क्वालिटी है भाई, कुछ होना ना। अल्लाह ताला तुमको शर्फ मखलूक़ात बोले नहीं, लक़द करमना बनी आदमा बोले नहीं, बोले रसूलुल्लाह भी बोले नहीं, बोले। समझ में आ रही? कई हदीस है, कुरान की कई आयतें हैं, तो वो क्या क्वालिटी है जो तुमको जो है फरिश्तों से आगे ले जा रही है। அன்பர்களே எஜமா சொல்றாங்க, வலக்கத் கர்ரம்னா பனி ஆதமுடைய மகனை நாம் சங்கைப்படுத்தினோம் என்று அல்லாஹ் சொல்றான். அப்ப மலக்குகளை விட அல்லாஹ் மனிதர்களை இந்த கண்ணியத்தை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கான். இன்னும் சில அல்லாஹ் அஃதலுல் மக்லூகாத் அஷ்ரஃபுல் மக்லூகாத் சிருஷ்டிகளில் மேலானவன் என்ற பட்டத்தை மனுஷனுக்கு கொடுத்திருக்கான் அல்லாஹ். அப்ப மலக்குகளை விட இந்த மனிதனை அல்லாஹ் தஆலா எந்த காரணத்தினால் உயர்த்தினான் என்று கேட்கிறான். समझ में आ गई? क्या समझ में आई कि हम उनसे जो है अशरफ मखलूक़ात तुम है, मगर किस वजह से है? சிறந்த படைப்பு என்றால் எந்த காரணத்தினால் சிறந்த படைப்பு? कुछ काम होना, ஏதோ ஒரு வேலை இருக்கணும், कुछ वैरायटी होना, कुछ क्वालिटी होना, ஏதோ ஒரு தகுதி மனுஷனுக்கு இருக்கணும். अब जैसे मिसाल के तौर पर ये ज़ुबैर है, अब अगर इन्हें आलिम है, इसके मुकाबले में फाजिल हूँ, तो लामुहाला इसके मुकाबले में मैं फजीलत मेरे पास है, और दूसरा अगर उन्हें कामिल है तो कमाल उसके पास है, बढ़ते जा रहा है ना। तो इसी तरह फरिश्तों से जो तुमको जो है अशरफ बोला गया वो क्या क्वालिटी है? அன்பர்களே, ஒரு ஆலிம் இருக்கிறார், இன்னொருத்தர் ஃபாசில் இருக்கிறார், அதுக்கு மேல ஒருத்தர் காமில் இருக்கிறார். அப்ப ஒவ்வொரு குவாலிட்டி கூட கூட அவருடைய தகுதி கூடுது. அப்ப மனிதனுடைய விட மலக்குகளை விட மனுஷன் என்ன தகுதி இருப்பதனால அல்லாஹ் ஜல்லஷானு தஆலா இந்த தகுதி மனுஷனுக்கு கொடுத்தான்னு கேட்கறாங்க. बात समझ में आ रही है? तो मालूम यह हुआ कि फरिश्तों के पास अब क्या है, ये देखो अल्लाह तुम्हारा नमाज फ़र्ज किया ना, इसमें क्या किया, जिक्र इसमी को अल्लाह फ़र्ज ने, रसूलुल्लाह सुन्नत किए हैं, क्योंकि जो रुकू और सज्जे की हकीकत को नहीं समझता, कम से कम तस्बीह से तो तस्कीन होना ना, ये रसूलुल्लाह का करम है, ये रसूलुल्लाह का करम है। अल्लाह से तो तू मिल नहीं सकता, काबे को देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह बोलता, और तो अर्ज बनाया तो हजरत उमर बोले क्या माता मशानु करते रे, कहा मोमिन के मुकाबले में काबा तेरा मकाम नहीं है, काबा तो ये काबे का काबा यार। சுப்ஹான் அல்லாஹ். அன்பர்களே, ஏன் சுப்ஹான் அல்லாஹ் அல்ஹம் சுப்ஹான் அல்லாஹ் பிஹம்தி சுப்ஹான் அல்லாஹ் அலீம் இதெல்லாம் ஏன் அல்லாஹ் பெருமான் சுன்னத்தாக்குறாங்கன்னு கேட்டா, ருக்கு தான் ஃபர்து, சஜ்தா தான் ஃபர்து, தஸ்பீஹ் ஒரு ஃபர்து சுன்னத் ஏன் ஆக்குறாங்க? ஹகீகத்து ருக்கு செய்ய உன்னால வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு, சஜ்தாவில் நீ ஹகீகத்து சஜ்தா செய்ய வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சுன்னா குறைஞ்சபட்சம் நீ வந்து வாயா தஸ்பீ சொல்லி உன் மனசை மனசை ஆத்திக்கோ. காபாவை பார்க்கறது மௌலாவை சேர்த்து பார்க்கணும், பார்க்க முடியலையா அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரப்பில் ஆலமீன் சொல்லிக்கோ, பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் சொல்லிக்கோ என்று மனதை தேர்த்திக் கொள்வதற்காக வேண்டிதான் அந்த கியாமுலையும் ருக்கூலையும் சஜ்தாவிலையும் தஸ்பீஹாத்துகள் பெருமானை வச்சுட்டான். तो याद रखो फरिश्तों के पास खाली जिक्र इस्मी है, जिब्राइल भी या अल्लाह बोलता है, उसके सिवा कुछ नहीं आता है। அன்பர்களே, மலக்குமார்களுடைய zikr இஸ்மி மட்டும் தான் இருக்கு. சுப்ஹானல்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சுப்ஹூன் குத்தூஸின் தஸ்பீஹ் மட்டும் செய்கிறார்கள். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களாக இருந்தாலும் அது மட்டும் தான் அவரிடத்தில் இருக்கிறது. जिब्राइल भी हजरत आदम को सजदा किया, ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் சஜ்தா செய்தார்கள். जिक्र इस्मी था, आदम के बाद जिक्र फेली भी था, जिक्र वस्फी भी था, जिक्र जाती तो சுப்ஹானல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹ். வாஹ் 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 வாஹ். அன்பர்களே, ஹஜ்ரத் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிடத்திலே ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய zikr இஸ்மி மட்டும் இருந்தது, ஹஜ்ரத் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய zikr ஃபெலி zikr வஸ்ஃபீம் கூட இருந்தது, ஹஜ்ரத் அப்துல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய zikr ज़ाती भी இருந்தது. अब बात समझ में आई? रुकू में जो है तस्बीह फर्ज नहीं है, रुकू फर्ज है, जिक्र फेली है, सजदा जिक्र फेली है, क़ियाम जिक्र फेली है। अरे तकबीर, जिक्र फेली का मकाम बड़ा हुआ, इसलिए तू फरिश्तों से बड़ा हुआ है। நண்பர்களே, குடிவதிலே zikr இஸ்மி ஃபர்து கிடையாது, அது zikr ஃபெலியுடைய மகாம். அது சஜ்தாவுல zikr இஸ்மி ஃபர்தாக்கல, ஏன் zikr ஃபெலியுடைய மகாம். அது இஸ்மி விட ஃபெலி மேலானதாக இருக்கிறது. उसके बाद जिक्र वस्फी फिर बताएंगे इंशाअल्लाह, वक्त नहीं है, कैसे आगे बढ़ रहा है, समझ में आ रही बात? अनमल्लाहु अलैहिम मिन नबीना व सिद्दीकीन व शुहदाए सालिहीन। जिक्र इस्मी में रहो, शुहदा जिक्र जो है ना फेली में आ जाओ, सिद्दीकीन जिक्र वस्फी में आ जाओ।
अनबिया। और जिक्र जो है जाती में तू तो नहीं जा सकता, अबू बकर फना हो जाएगा रसूलुल्लाह की जात में, तो जाए। அன்பர்களே, அதனால அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனை 4 மர்த்தபாக்களாக பிரித்தான். உலாயிக மஅல்லதீன அன்அமல்லாஹு அலைஹிம் மினன் நபிய்யீன வஸ்ஸித்தீகீன வஷ்ஷுஹதாஇ வஸ்ஸாலிஹீன். சாலிஹீன்கள் திக்ர இஸ்மியோடு போதுமாக்கிக் கொள்வார்கள், ஷுஹதாக்கள் திக்ர ஃபிஅலியில் இருப்பார்கள், சித்தீகீன்கள் திக்ர வஸ்ஃபியில் இருப்பார்கள், நபிமார்கள் திக்ர ஜாத்தில் இருப்பார்கள். நபிமார்களோடு நாம் நபியாக ஆக முடியாது, ஆனால் சித்தீக் அக்பர் மாதிரி ஆகி நபிமார்களோடு சேர்ந்து இருக்கலாம். நம்ம समझ में आ रही बात? इसीलिए अभी जो है बच्चा भी जिस वक्त तकरीर करा तुमको मैं समझाया कि हज़रत जिब्राइल ने रसूलुल्लाह से मल इस्लाम हो, मल ईमान हो, मल एहसान हो बोलो तो खामोश बैठ गया। क्यों खामोश बैठ गया भाई? सदकता बोलना था ना, नहीं बोला ना, क्योंकि उन्हें देखते ही नहीं ना मौला। மகனார் பேசும்போது சொன்னாங்க, ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வந்து பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ்லாம் என்றால் என்னவென்று கேட்டார்கள். பெருமானார் பதில் சொன்னார்கள், அதுக்கு ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் நீங்க சொல்றது சரிதான் என்று சொன்னார். அதை ஆமோதித்தார்கள். அடுத்து ஈமான் என்றால் என்னவென்று கேட்டார்கள். பெருமானார் பதில் சொன்னார்கள், சதக்த, நீங்க சொன்னது உண்மைதான் என்று அதற்கு உறுதிப்படுத்தினார்கள். மூன்றாவது இஹ்சான் என்றால் என்னவென்று கேட்டார்கள். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் பெருமானார் பதில் சொன்னார்கள். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஒண்ணுமே பேசல, அங்க சதக்தவும் இல்ல, ஒண்ணும் अल्लाह कहना करता ना कोई ना ये करम सदकता बोलना था ना, मल ईमान या रसूलुल्लाह अंतुमिना बिल्लाह वाला तो सदकता। तो हज़रत उमर बोले ना, इधर जो है सवाल भी कर रहा है, इधर तस्दीक भी कर रहा है, मगर जब एहसान में आए तो ताबान हो। இஹ்சானுடைய பாடம் வந்த உடனே அதற்கு மேல் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. சதக்தா என்று ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொல்லவில்லை. तो क्या इसी से मालूम हो रहा है कि मलाइका इस्लाम में और ईमान में शरीक है, एहसान में रहिए। அன்பர்களே, இதுல நமக்கு தெரிய வருகிறது, இஸ்லாத்திலே ஈமானிலே மலக்குகள் நமக்கு ஷரீக்காக இருக்கிறார்கள். இஹ்சான்ல ஷரீக் இல்லை, இஹ்சான்ல ஷரீக் இல்லை. वाह वाह, ये तुम्हारी क्वालिटी है, இது நம்முடைய குவாலிட்டி தான். இதுதான் अशरफ मखलूकात इससे होने वाले, இதனால தான் அஷ்ரஃபுல் மக்லூகாத் என்று அல்லாஹ் நம்மை சொன்னார். हाल होना है। वाह वाह वाह, फैजी शाह साहब के पास हाल नहीं था, मुंबई उलूम के पास था। पूरा कुरान को उनको समझाते थे, यहाँ रहमान को समझाते थे, वाह वाह वाह. वहाँ खाली कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक। மதரசாவில் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரப்பில் ஆலமீன் என்று வெறும் குர்ஆனை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள், ரஹ்மானை சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு ஷேக் நாயமா இருக்கிறார். हाँ, यहाँ अगर आएगा वहाँ कुरान को ले, ज़ाहिर कुरान। वाह वाह, आलिम का काम कलामुल्लाह पढ़ाना, बेशक आरिफ का काम वजहुल्लाह को दिखाना। கலாமுல்லாவை படித்துக் கொடுப்பது ஆலிம்களுடைய வேலை, வஜ்ஹுல்லாவை படித்துக் கொடுப்பது ஆரிஃப்களுடைய வேலை. और हम जो है वजहुल्लाह को देखने के लिए पैदा हुए हैं। நாம் வஜ்ஹுல்லாவை பார்க்கத்தான் இங்க பிறந்தே வந்திருக்கிறோம். मा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून इल्ला लियअरिफून। देखना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुभानअल्लाह, समझ में आ रही बात? सुबून खुदूसुन हमारे को नहीं चलता, चलता सालिहीन को चलता, इनके जूतियाँ उठे वाले को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन होना है हमारा, हमारा को नहीं होना। या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये रास्तों से गुजर गए रे, इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन में पहुंचा दिया रे। அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரப்பில் ஆலமீன், ரஹ்மானிர் ரஹீம் சொன்னோம், மாலிகி யௌமித்தீன் சொன்னோம். எப்ப ஷேக் நாயகம் அவர்கள் கிடைச்சாங்களோ அப்பதான் இய்யாக்க நஅபுது வ இய்யாக்க நஸ்தஈன் சாமने देख முன்னாடி பார்த்து சொன்னோம். तो तेरी नमाज में अब अर्श वाला अर्श पे नहीं है, इय्याका में तेरे सामने, तेरे सामने नमाज नहीं है। இப்ப ஷேக் மாதிரி நம்ம கை பிடித்த பின்னால் நம்முடைய தொழுகையில அர்ஷ் வாலா அர்ஷ்ல இல்ல முன்னாடி வந்தாங்க. अर्श में भी है, अर्श में भी है, अर्श पे भी आया है, अर्श में भी तेरे लिए आया है, तेरे लिए आया है, के तवस्सुल से आया है। फैजनादुल पीछे नमक मुनाने होता क्यों आया है? इन्हें क्या करा, पहले इया बोला, इया का बोला, माबूद को बाद में बोला। समझ रहे? इया का बोलो तो पहले माबूद सामने होगा, समझ रहे? नस्तईन बोल तो पहले मुस्तान सामने होगा, समझ
रैया का पहले उसको सामने आए। हाँ। हजरत उमर से बोले कि तू अल्लाह को देखा, उन्हें सामने आए बगैर में अल्लाह को ऐसे अल्लाह की इबादत ऐसे अल्लाह की इबादत नहीं करा। ஆரிஃப்கள் ஈயாக சொல்றதே இல்ல, உன்னை வணங்குகிறோம் என்று சொல்வதே இல்லை, முன்னாடி அல்லாஹ் பார்க்காம முன்னாடி வந்த பின்னாடி தான் வணங்குற. உபர்நாதர் கேட்டாங்க, நீங்க அல்லாஹ் நீங்க எல்லாம் எப்படி வணங்குறீங்க? அல்லாஹ் முன்னாடி பார்க்காம வணங்குறதே இல்லை. என்ன பொய்யா போயிருமே, உன்னை தான் என்று யாரை பார்த்து சொன்ன நீ? ஈயாக நஅபுது வ ஈயாக நஸ்தஈன் முன்னாடி கொண்டு வந்து சொன்னார்கள் ஆரிஃப்கள். वाह वाह वाह। अरे ये काफिर को जो हाथ से बनाता है सनम को, तो उसको सामने रख के पूजा करता है तो सुकून होता है। तेरा मौला तो नहीं बोला, कहाँ नहीं है रे वो तेरे अंदर है। பொய்யான தெய்வங்களை வடிக்கக்கூடியவர்கள் அதை முன்னால் வைத்து அதை பார்த்து வணங்குகிற பொழுது அதிலே அவர்களுக்கு மனம் நிம்மதி அடைகிறது. உண்மையான பரஹத்தான மௌலாவை நாம் முன்னாடி வைக்க எப்படி வணங்க முடியும்? நமக்கு அதுல क्या नमाज है समझ में आ முன்னாடி மௌலாவை கொண்டு வராம தொழுகையாது. அது என்ன தொழுகை விளங்கலையே எனக்கு. तो बोला क्या बोलता, पीर अल्लाह के पास क्या मिला? ले पीर के पास गए तो अल्लाह मिला, रसूलुल्लाह रसूल के पास गए तो अल्लाह मिला, तेरे को क्या मिला? समझ में आ रही बात? போன அல்லாஹ் ரசூலுல்லாஹ் போன அல்லாஹ் கிடைச்சாங்க, வேற என்ன கொடுத்தாங்க सरकार? कहने का मतलब यह है छोड़ो इनको, उनको जवाब देने की क्या जरूरत है? समझ में आ रही बात? धुन में धुन अपना धुन, ला इलाह पे है, ला इलाह पे है चलन अपना, तुम तो कंचन पे है, समझ रहे? ला इलाह पे है क्या है? भजन अपना हम रात तमाम ला इलाह खुद की नबी कर रहे हैं। तुम जो है ना ये देवलों में जो है सनमों की जो है ना मूर्तियों की नफी कर रहे हैं। वैदी बोला यार इसको निकाल दे, वजूदु का सनम। அன்பர்களே, லா இலாஹ என்று சொல்லி இந்த மக்கள் வணங்கக்கூடிய இந்த கற்கெல்லாம் இருக்க, இது தெய்வம் இல்லை, நம்ம அதை இன்கார் செய்ய தேவையில்லை. லா இலாஹ என்று சொல்லி உன்னை சொல்லி அதே பஜனையா சொல்லிட்டே லா இலாஹ என்று சொல்லி खुदको नफी करो, उन्ने इल्लामाக்கு. அதுதான் எஜமான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். ऐसे जो है सुकून आता है हमको समझ में नहीं आता। भाई अर्श के ऊपर जो है आदम अलैहिस्सलाम आँख खोली, उसके बाद ये पूरे काफिरा आए, नीचे आए तो नूह अलैहिस्सलाम के बाद काफिरा पैदा हुए जो तब तक नहीं थे। आदम अलैहिस्सलाम जो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मुता कहाँ थे, सलाम कहाँ थे, किसकी नफी कर रहा है? லா இலாஹ இல்லன்னு சொன்னாலே அஸ்னாம்கள், அவுசான்கள், சிலைகள், கற்கள், முற்கள் இவைகளெல்லாம் தெய்வம் இல்லை என்று கலிமா மறுக்கிறது என்பதுதான் உங்களுக்கு அர்த்தமாக இருந்தால், நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் காலத்துக்கு பின்னாடி தான் அஸ்னாம்கள், அவுசான்கள் வந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ஆதம் நபி காலத்துல எங்க இருந்துச்சு? அரிசில எழுதி வச்சிருந்தான் அல்லாஹ் தஆலா. அரிசில எங்க போய் அல்லாஹ் அஸ்னாம் யார் வச்சிருந்தா? அப்ப லா எதை நபி செஞ்சுச்சு? எந்த அஸ்னாம் நபி செஞ்சுலா? अल्लाह गैरुल्लाह में मोहम्मद था। क्या था? अर्श पे भी गैरुल्लाह है। तुम बोलते हैं ना अर्श पे अल्लाह रहता है, गैरुल्लाह मोहम्मद है ना रे? क्या भाई क्या तौहीद है तुम्हारी? जरा समझो, ये पीरों से क्या मिला बोलो तुम जरा बताओ, पूछो। अच्छा कलम में तौहीद बोलते हैं ना इन्हों? तौहीद का माना क्या है? तो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह में अल्लाह भी मोहम्मद भी तौहीद कहाँ है? बोलो बा। தௌஹீத் கலிமான்னு சொல்றோம். தௌஹீத்னா ஒன்றுபடுத்துது. இப்ப லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் அல்லாஹ் வந்தாங்க, ரசூல் வந்தாங்களே. बोल बा तौहीद कहाँ है? अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने माना तो काफिर है ना? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा भी तो काफिर, खाली मोहम्मद रसूलुल्लाह बोला भी तो मुसलमान है ना भाई जी? क्योंकि इसके अंदर क्या है, मोहम्मद भी अल्लाह भी है। ला इलाहा में अल्लाह मोहम्मद है ये तौहीद तो यही असल ये। லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று மட்டும் ஒரு மனுஷன் சொன்னான், முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் சொல்லல, அவன் முஸ்லிமானா முஸ்லிம் இல்ல, காஃபிர் அவன். ஒரு முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் மட்டும் சொன்னான், அவன் முஸ்லிம் ஏத்துக்கலாம். ஏன்னா அதிலே முஹம்மதும் இருக்கான், அல்லாஹ் இருக்கான், ரெண்டு பேரையும் ஒத்துட்டான்ல அவன். முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ்வுடைய தூதர்னு ஒத்துட்டான், ரெண்டுமே வந்துருச்சு. ये क्या तौहीद है बात तुम्हारी? पैसी शाह साहब के मुरीदों को बोलता है तौहीद है फला, तुम जानता नहीं कुछ भी करता, ये तेरी क्या तौहीद है कि बताना बा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दो है, मोहम्मद भी है रसूलुल्लाह। अगर मोहम्मद को खुदा बोला, माबूद बोला काफिर, अल्लाह को नहीं बोला काफिर, इनको बोला तो काफिर। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह दोनों मिला के पढ़ा तो तुम मुसलमान। और कलमे शहादत में भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक बोल के भी अशहदु अन्ना मुहम्मदन बोल रहा, कलमा पूरा नहीं होना बा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अशहदु अन्ना मुहम्मद
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अकेला है, गुरु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पुरालावा इन्ना तंबी दी क्या तौहीद है। तो मालूम ये हो मैं शार्ट कर रहा हूँ, तुमको समझा रहा हूँ, उनको छोड़ो। अरे तौहीद का माना यह है उलूहियत और रिसालत मिली तो तौहीद हाथ को आएगी, और इसी तरह इधर विलायत और रिसालत विलायत और उलूहियत मिली तो खुदा हाथ आएगा, मगर नहीं हाथ। பொருள் என்னவென்று சொன்னால் எப்போ உலூஹியத்தோடு ரிசாலத்தும் சேர்கிறதோ அப்பதான் தௌஹீத் நமக்கு கிடைக்கும்। அதே மாதிரி ரிசாலத்தோடு விலாயத் சேர்ந்தால் மௌலா நமக்கு கிடைக்கும்। सुभान जैसा रसूल का जो है इनकार करा तो काफिर हो जाएगा, वली के जो है इनकी विलायत का इनकार करा तो अल्लाह से दूर हो जाएगा, मुसलमान तो रहेगा मगर अल्लाह नहीं मिलेगा। ரிசாலத்தை மறுத்தால் அவன் காஃபிராகி விடுவான், வலிமார்களை மறுத்தால் அவன் காஃபிராக மாட்டான், அல்லாஹ்வை விட்டு தூரமாகி விடுவான் சொன்னார்। नहीं तो फिर बताओ, अब बात समझ में आ गई। मुख्तसर ये तुम्हारे को खुलासा दे रहा हूँ। फैजी शाह के पास आने से क्या मिला? तौहीद मिली। समझे, जो अर्श वाला अर्श पे था तेरे सामने या का नाम नहीं आया। और दूसरी बात क्या हुई कि जो है अशरफ मखलूक़ात तुम मलाइक से भी तुम आगे निकल गए। व्हाट इज़ द वैरायटी, व्हाट इज़ द क्वालिटी, क्या हुई है कि उनके पास ओनली जिक्र इस्मी है, तेरे पास जिक्र फ़ेली भी है। अल्लाहु अकबर जो बोलेगा कि ये मेरी निस्बत क़ुव्वत है, अल्लाहु अकबर है। फिर अर्ज़ कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में कौन का मुतकल्लिम कौन है, उसका कलाम हो रहा है। तो रुकू में गया तो किसकी क़ुव्वत से रुकू में जा रहा है, समझ में आ रही है। जब इस मौके पे पढ़ो ना पढ़ो सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है, रसूल की सुन्नत भी होना है, मेरे मौला की जो है कुदरत की जो खुर्बत है उनकी खुर्बत मेरे रसूल की ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சுன்னத்துப்படி சுப்ஹானல்லாஹ் சொல்ல வேண்டும், எல்லாமே திக்ருகளை செய்ய வேண்டும்। அத்துடனே தக்பீர் கட்டுகிற பொழுது நான் கட்டவில்லை, அல்லாஹ்வுடைய குவத்துக்கு முன்னால் தக்பீர் கட்டுகிறேன், நான் குனியவில்லை, அல்லாஹ் என்னை குனிய வைக்கிறான், அல்லாஹ் சஜ்ஜா செய்ய வைக்கிறான் என்று அங்கே நிஸ்பத் குவத்தை பார்க்க வேண்டும், சிஃபாத்துகளை பார்க்க வேண்டும்। அப்ப இரண்டும் சேர்ந்த திக்ராக அல்லாஹ் ஆக்கி விடுவார்। सुभान तो कुरान की आयत से देखिए मैं अपनी बच्ची से बात इजाज़त 5 बजे बरखा हाँ क्या बात ओ भाई तो 5 बजे बरखास्त कर देंगे, 5 बजे बरखास्त कर देंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअ ज़ियारत है, ज़ियारत हाँ भाई ज़ियारत बाद में भी कर सकते हैं। आओ आओ सल्लु अला नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक अब देखो तुमको ये जो मैं बोला, क्योंकि लोग पूछते हैं तो तुम्हारे को भी इसका ला सकता कि भाई हमारे पास जो है जिक्र बेली भी है, वसी भी है, ये तो है तुमको मालूम, उनके पास नहीं है, ये कैसा मालूम होना? उनके पास नहीं है तो जब भी वो जो है तुम्हारे से जो है तुम बड़े हो गए उन्हें छोटे हो गए। डिग्री होना ना, पर डिग्री होना खाली मैं जो है ना जामे अजहर को जाके मैं बोले तो बताना सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा ना, तो पुलिस ले आकर डाल देती है अंदर। समझ में आ गई बात? तो अब जो है कुरान से जो है सबूत देना अच्छा रहता। हमारे बाबा बोले थे, दादा बोले थे, बोले तो नहीं सुनता सामने वाला, तू भी नहीं सुनता, नहीं समझ में आ रही है। आगे बात बोल दिया सरकार खामोश बैठ जा, बाद में देखिए। मुरीदों से बाहर वाले से ज़्यादा मुरीदों से परेशानी नहीं थी, क्योंकि इन्हें से जितना सुने हुए रहता। समझ में आ रही है? इसको देख आलिम के पास आलिम का शैतान, समझ में आ रही बात? अहले तरीक़ के पास आलिम का भी होता, अहले तरीक़ का भी होता। हाँ, 2 शैतान इसके पास होते। इसके बाद आलिम है ना, उसके एक शैतान, उसका नहीं एक शैतान है। इसके बाद अहले तरीक़ के पास आलिम का भी रहता, तरीक़त वाले का भी रहता, सूफी का भी रहता इसके पास। हाँ, वैसे बचना है। अब वो उलमाए ज़वाहिर के पास उर्दू का सनम बोलो तो वाटी ज़मीन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तेरे को समझ में आ रहा, तेरा कैसा सनम है, कुछ है ना, समझना है ना तेरे को, फिर इनके जूतियाँ उठाए तो समझ में आएगा ना। वाह 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 वाह। तो क्या बात चल रही थी, क्या समझा रहा था, क्या समझा रही थी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना दलील होना, क्या उनके पास जो है ना जिक्र वेली नहीं है, हमारे पास जिक्र वेली है। तो जिक्र वस्वी से जिक्र वस्वी का रखने वाले का मकाम बढ़ा हुआ है ना, साले से शहीद है ना, ये तो खुद कुरान भी है ना, अनम अल्लाह वाले मिन नबी है ना, बस सिद्दीक़ी व शुहदाए साले।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ये जिन ने क्या है क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व युस्बिहु नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अब अपने अमल को पेश किया, तस्बीह व तक़दीस तक़दीस को अमल है ना, नहनु नुसब्बिहु, तो फेल की निस्बत किस तरफ करा? अमल की अपनी ज़ात की तरफ किया ना रे मलाइका, वाह 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 वाह, फेल की निस्बत किधर किया? अपने तरफ से करें, तुम्हारी तरीक़त में क्या है? खुदा की तरफ करना है। फेल की निस्बत खुदा के तरफ जाना है, निस्बत जो है ना कसब की निस्बत तेरे तरफ आना है। यही जिक्र फेली है रे। மலக்குமார்கள் அல்லாஹ்ட்ட பதில் சொல்ல அல்லாஹ்ட்ட பேசுகிற பொழுது நஹனு நுஸப்பிஹு பிஹம்திக வ நுஹத்திஸு லக், அல்லாஹ் உன்னை நாம தஸ்பீஹ் செய்கிறோம் என்று புகழ்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். தஸ்பீஹ் செய்த இந்த ஃபெயலை தன் பக்கம் செய்து கொண்டார்கள் அவர்கள். அப்ப அவங்கள்ட்ட அந்த தௌஹீத் ஃபெயலி கொண்டு வரவில்லை அவர்கள். அப்ப தௌஹீத் ஃபெயலி மலக்குகள்ட்ட இல்லை என்பதற்கு இதுவே ஆதாரமா இருக்கு। तो 1000 मर्तबा जो कौन होता है जिक्र फेली का रखने वाला 1000 जो है रकात पड़ेगा, अस्सलाम वालेकुम रब्बना ज़लमना बोलेगा, मेरी अपनी तो ताकत में तुम्हारी ताकत मेरी निस्बत से मैं पढ़ा, ये तेरे को बोलना है। सारे मलाइका बोले नहनु नुसब्बिहु, इन्हें क्या बोलेगा? मैं कैसे करा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरे में कुव्वत ही क्या है? तुम्हारी ताकत, तुम्हारी इबादत। அன்றைய நிஸ்பத் போட்டு விளங்கிய ஒரு மனிதர் ஒரு முரீத் 1000 ரக்காத் தொழுதாலும் தொழுது முடித்து விட்டு ரப்பனா ஸலம்னா அன்ஃபுஸனா யா அல்லாஹ் நாங்கள் துல்மு செஞ்சோம் என்று சொல்வார். அந்த தொழுகையை தன் பக்கம் சேர்க்க மாட்டார். நிஸ்பத் ஒரு விளங்க தௌஹீத் ஃபெயலில் இருக்கக்கூடிய மனிதர் தன் பக்கம் சேர்க்க நாங்கள் தொழுதோம், நான் தஸ்பீஹ் செஞ்சேன், நான் திக்ர் செஞ்சேன் என்று சொல்ல மாட்டார். மலக்குகள் அவங்க நஹனு நுஸப்பிஹு பிஹம்திக வ நுक़த்திஸு லக இந்த ஃபெயலை தன் பக்கம் சேர்த்தார்கள். அப்ப தௌஹீத் ஃபெயலை நீங்கிருச்சு பாருங்க। जवाब क्या दिया अल्लाह ताला? आयत पढ़ो, क्योंकि उनको तौहीद फेली मालूम नहीं थी। खामोश रहो, समझाना बेकार है। इन्नी आलम माला तालम, ये तौहीद फेली तुम्हारे पास नहीं है, आलम के पास है। इन्नी आलम माला तालम, நீங்கள் அறியாததை நான் அறிவேன் என்று அல்லாஹ் சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன? உங்களுக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியும். தௌஹீத் ஃபெயலி உங்கள்ட்ட இல்லை என்று எனக்கு தெரியும் என்று அல்லாஹ் சொல்லிட்டாங்க। समझ में आ गई? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीजें हैं। तो हमारे को जो है तो बाहर वालों को मुतमईन करने की क्या जरूरत है? उन्हें अंदर बैठा हुआ है, उन्हें हमारा दिल मुतमईन हो गया, क्या है मुतमईन हो गया हमारा दिल बस। अरे उन्हें बैठा हुआ है कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह में, तो तू है कहाँ रे? उन्हें खुद तू समझ रहा भाई का ने मैं आया हूँ, मेरे को उन्हें लेके आया है, मेरे को उन्हें लाके कदमों में डाला है। नहीं आता, उन्हें लेके आया बात को अच्छी है। तुम्हारा बाबा का नाम क्या है? शेख अब्दुल कादिर, वो हमारा साथी है। तुम्हारा बाबा हमारे जिले में भी हमारे साथ रहा, बहुत मजे का आदमी। खैर बहरहाल, तो तुम जो है ना उनके बाप के तुम्हारे बेटे हैं ना, बोलो दूसरा बाप तुम्हारा कोई नहीं हो सकता। लाए अल्लाह मियाँ इसके मुकद्दर में उसके सुल्ह में तेरे को लेके आया। दूसरा तीसरे सुल्ह में तू जा नहीं सकता था, अब कोई आ नहीं सकता था। रूहानी सुल्ह में तू इसके जा नहीं सकता था, कहीं आ नहीं सकता था। अब आदम से लेकर ईसा तक जितने अनबिया है उनके उम्मतें आए नहीं, हमारे मुक़द्दर मोहम्मद रसूलुल्लाह के நமக்கு தந்தை அல்லாஹ் ஒருத்தர் வச்சிருக்கான், அவங்க பிள்ளை நம்மளை வச்சிருந்தான். நாம வேற வாப்பா ஒரு புதுல பிறக்க முடியாது. இவங்க தான் நமக்கு வாப்பா, இந்த வாப்பாக்கு இவங்க தான் மகன் என்று அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி வச்சிடறான். கடைசி வரைக்கும் அவங்க தான் நமக்கு தந்தை. அதே மாதிரி இவங்க தான் நம்ம ஷேഖ் என்று அல்லாஹ் முடிவு செஞ்சு வச்சாங்க. அங்க தவிர வேற பக்கம் நம்ம போக முடியாது, அல்லாஹ் அப்படி வச்சிருக்காங்க। जिक्र फेली में आगे निकल गया, इया का नाबुदू में जिब्राइल से भी आगे निकल गया, इया का नाबुदू में आमने सामने हो गया। इनको जिक्र जो है मलैसान में खामोश बैठ गया, उनका खामोश बैठने वाला है। अब बोला आगे बोला इया का नाबुदू इया का नस्ताईन, समझ में आ रहे हैं? नाबुदी की इंतहा ये है कि फना हो जाना है, नस्ताईन में कि बाकी बिल्ला हो जाना है। जब बाकी बिल्ला हो तो उनका काम है तेरे को ले जाना है अपने रास्ते को। जिब्राइल जो है सिदरतुल मुंतहा पे ख़त्म हो गए,
उसके बाद अल्लाह खुद आया ला मकाम में मेरे रसूल को लेके गया और दोनों मज़े करे और बोले आओ मैं तेरे இய்யாக நஅபுதுவில் அடியான் தன்னை ஃபனாவாக்கி விடுகிறான். மீண்டும் இய்யாக நஸ்தஈனில் அல்லாஹ்வை கொண்டு அவன் பகாவாகி விடுகிறான். அது பானி பில்லாவாகி விடுகிறான். இய்யாக நஅபுதுல இய்யாக நஸ்தஈன்ல பாக்கி பில்லாவாகி விடுகிறான். எப்ப அவன் பாக்கி பில்லாவாகி விட்டானோ அதுக்கு மேல அவன் அல்லாஹ் தஆலா கூட்டிட்டு போறான். இவனுடைய கமால் இல்ல, அல்லாஹ் கூட்டிட்டு போறான். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஒரு கட்டத்தில் நின்று விடுகிறார்கள். அப்புறம் அல்லாஹ் வந்து ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கூட்டிக் கொண்டு சென்று அங்கே அல்லாஹ் ரகசியம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான். வஹா இலா அப்தி மா வஹா என்று பாக்கி பில்லாவான பின்னாடி நடந்த செய்தி. तो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हो. खत्म कर रहा हूँ बिहौले ही ताला. हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं. तुम्हारा काम अल्लाह ताला से. इन्हीं वजह तो वजिया में सबको जो है हटा के उसी की तरफ जाना है ना. बोले उसकी तरफ जा रहा तो इधर उधर कहीं को देख रहा, बोल नहीं देखा मुझ पर. समझ में आ रहा तो रास्ते से जा रहा. कोई आदमी जो है ना तो दीवान आदमी तेरे को छोड़ा तो क्या करता है, अस्सलाम वालेकुम इज़ा मर्रू बिल क्या है बिल लगवी मर्रू किरामा खालू सलामा. इसके अंदर खालू मतलब जाहिल के माने खुदा को जानता नहीं है, इतराज़ करेगा. औलिया पे करा तो तेरे पर नहीं करेगा क्या, बराबर करेगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान ने जो है फैज़ी खाली एक दिन के लिए नहीं है, खाली हाजिर हो गया नहीं, हर नमाज में हर हरकत में इसका फैज़ान, पीर का फैज़ान. याद फी ज़लातिहिम दाइमून में ஒரு நாள் வந்தோம் சர்க்காருடைய ஃபைஸான் வாங்கிட்டு போனோம் இல்ல. ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் இன்ஷா அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானு தஆலா ஹும் ஃபீ ஸலாத்திஹிம் தாயிமூன் சொன்னது போல தௌஹீத் ஃபிஅலியுடைய இத்ராக் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று इस बात को अच्छी तरह याद रखो. खाली ये आके एक बात सुन लिए, खाली जो है चीखा मार लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला. हाल नहीं समझ में आ रही बात. रसूलुल्लाह ने सहाबा को हाल दिया है. कुरान जो तुम्हारे हाथों में ही नहीं दिया, बुखारी शरीफ से हाथ इतना सहाबा को नहीं दिया, खाली हाल दिया उन किताबों का और कुरान का हाल दे दिया. नहीं समझ में आ रही बात. तो क्या हुआ, ये हाल हो. சஹாபாக்களுக்கு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குர்ஆனை மட்டும் கொடுக்கவில்லை, ஹதீஸ்களை மட்டும் கொடுக்கவில்லை, அவருடைய ஹாலை கொடுத்து விட்டார்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி वसल्लम. वसल्लम. इस बात को अच्छी तरह याद रखो. शरीयत में हाल है, हाल भी उसके साथ होना है, क्योंकि इक़रारुन बिल लिसान तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब है. मगर तरीक़त में क़ल्ब से ही शुरू है. जिस्म भी रहना है, क़ल्ब भी होना है, रूह भी होना है, न तो वह अहले तरीक़ नहीं हो सकता. और उसकी पहली बेस, पहली बुनियाद, पहली ईंट ज़िक्र पासन पास है. ज़िक्र पासन पास अगर जारी नहीं है तो तुम सालिक नहीं है. सलका यसलुकु फहुवा सालिकुन. सर पे सगीर है ना, सलका यसलुकु फहुवा सालिकुन. पहले दिन पहले अब उनके पास जब आया तो क्या हुआ, ज़िक्र पासन पास दिया नहीं दिया, कान में कुछ फूका नहीं फूका, ये दो चीज़ें हुए थे नहीं हुए थे. कुछ भूल गया ना, खाली एडमिशन ले लेके बैठ गया. तो ज़िक्र फासन पास पर भी तवज्जो करो. दिनों रात को सोते वक्त सुबह उठे पहला काम ये करो ज़िक्र फासन पास की तरफ, तो सारी रात तेरी ज़िक्र में चले जाए. இவர்களே என்ன சொல்றாங்க, சேஷநாத்திர வந்தோம் நாம வந்து சும்மா போக கூடாது, எப்பவுமே நம்ம அதே ஹால்ல இருக்கணும். அந்த ஹாலை உண்டாக்குறதுக்கு மிக சிறந்த வழி என்னவென்றால் பாசன் பாசன் இருக்கு. சர்க்கார் சொன்னாங்கல்ல, வந்த உடனே சர்க்கார் பாசன் பாஸ் இருக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. காதுல நம்ம ரகசியம் சொன்னாங்க. அந்த பாசன் பாஸ் இருக்கிற விடாம செஞ்சுக்கிட்டே இதுக்கு தான் ஹால் கொஞ்சமா நம்மள உண்டாகும்னு சொல்றாங்க. याद रखो, खाल रसूल और हार रसूल, मकसूद बिल खाल हाल रसूल है. अगर हाल नहीं है तो तू बदहाल है, कंगाल है, किसी काम का नहीं है. अल्लाह महफूज रखे. நண்பர்களே, காலுடைய அசல் நோக்கமே ஹால் உண்டாக்குறது தான். வெறும் சொல்லுல கேட்டு போனோம், ஹாலை உண்டாக்குனா அர்த்தம் இல்லாம போயிடும். எனவே முழுமையான ஹால் நம்ம கொண்டு வரணும். அல்லாஹ் நமக்கு अल्लाह महफूज रखे. अल्लाह ताला जैसे हमको निस्बत दिया है उसकी जो है कदर करने की हमें तौफीक इनायत फरमाए. इस महफिल को कबूल फरमाए. आने वाले जो फर्श पे है जन हकीकत वो अर्श हम जो है वो क्या अर्श वाले की हमेशा खबर है, वो हमारा हम तबलीग की तरीक़त है, जो है हम यहाँ